Very good morning, all. Very good morning. Can you hear me? My dear students, can you hear me? Is everything fine? हाँ, चलो. Start करें? Shall we start? Yes. So today we are starting a very new subject, and you know very well, you have been waiting since long. So हमने तो बहुत कोशिश किया, लेकिन before that एक बार मेहनत बताऊंगा. एक second. Just wait for a while. Yes, yes, yes. So let me tell you very clearly क्या क्या किए हम. ये पढ़े, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, होया, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ. चलो, मेहनत तो बहुत की है सर. अब देखो फल मिलता है या नहीं, भगवान जाने. Please, now I have changed some of the conditions of my class. Dear students, हाँ, है सब लोग जिंदा है. Hope everyone is there. So engineering mechanics. है ना? Yes. Engineering mechanics. Point number 1. I am going to cover this subject in a very detailed manner. Point number 1. So those who are in hurry and those who want to complete the subject immediately, please leave my class. You have to come with sufficient time. So if you are of the intention that I can cover this subject in a short and fast manner, so this is not the place. You can go somewhere. I have no problem. The reason is this is the base subject. I repeat, this is the base subject. Why do I call it as a base subject? Yes. Whatever mechanical engineering subjects you are studying, I think 60 to 65% of subjects, I would say even 70%, they have applications of this subject. You take strength of materials, you take machine design, you take theory of machines, you take fluid mechanics, you take fluid machinery. Everywhere you have this. Everywhere you have this. So this is the most important subject, not just from examination point of view, but it is equally important from interview point of view. For example, when I covered your theory of machines, when I covered your strength of materials, whatever concepts were required of mechanics, I have given there. But now, once we complete this course, straight away, with little time, we can cover those subjects. And that's why I say this is the most important subject. देखो sirs, कल पता नहीं कौन कहाँ रहेगा. लेकिन ये we don't know
where we go, where we live. But one thing is sure, definitely, I will try my level best. It's something like a gift from me and from an academy to my loving students. Why I'm calling it as a gift? Let me tell you very clearly. There is a reason, sir. After studying this subject, some students may be going to teach for IIT JEE, physics, first year mechanics, and I'll see that this is completely useful to you. Point number one. Point number one. So I'll be teaching in all languages, Hindi, English, everything. So language is not at all a problem in this batch. And please, Hiten, don't think that कि sir सिर्फ हिंदी में ही पढ़ाओ, सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाओ, ये नहीं होगा सर. It will be covered in, it is a bilingual batch, but in both languages, you know very well, especially my classes, language is not a barrier. I cover in, first I'll teach in English, then in Hindi, then I'll keep everyone in a comfortable position. Point number one. अब देखो, listen sirs, listen carefully. Please, you will be loving the way I selected questions, the way we have moved. Everything conceptual, everything conceptual. So I'm trying my level best so that you have, आपने खेले होंगे बचपन में, वो क्या बोलते थे, वो एक टायर के सॉरी ट्यूब के वो कट करके खेले हैं गुलेल. हाँ, देखो उसका भी प्रॉब्लम किए हम, बिना मैकेनिक्स के हम किए, लेकिन अब मैकेनिक्स से करेंगे. See, please, it's a request, my dear students. If you want to learn the subject, give time. इसलिए थोड़े लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, थोड़े लोगों का नहीं हो रहा है, because some people are doing in bits and pieces. If you study the subject in bits and pieces, you will never understand the subject in totality. अगर सब्जेक्ट को समझना है तो पूरा पढ़ो. ये मुझे ये आता है, मैं सिर्फ यही चैप्टर करूंगा, नो. चलो, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किया सर, कॉन्सेप्चुअल एंड एवरीथिंग. मतलब I personally feel that you are going to enjoy it. मुझे लगता है कि शायद, ये मेरा मानना है, I may be wrong also, मेरे सबसे अभी तक 12 सब्जेक्ट लिया, सबसे ज्यादा शायद ये एंजॉय कर सकते, ऐसा लग रहा है मुझे, मेरा मानना है सर. Because the way concepts are linked, straight away I'll be starting from zero level. I think that you know nothing. One student has asked a good question. As this is my first subject, as this is my first subject, what do I mean by first subject? I'm teaching this for the first time. तो शायद डाउट आता है कि अगर पहली बार पढ़ा रहा है, ये पढ़ा सकता है या नहीं. 100% डाउट है. कोई उसमें, there is no problem sir. As he is teaching this subject for the first time, क्या पढ़ा सकता, उसको आता है या नहीं, बहुत सही है सर. I don't mind. आपका जो थिंकिंग है वो आपका है, वो मेरा नहीं है सर. सो प्लीज थोड़ा देख लीजिए. सो especially with notes, definitely notes will take time. It will take time. तो नोट्स मैं इंतजाम करूंगा नोट्स का. देखो क्या क्या किया सर, मैं बताता हूं. One particular question I'll try to solve in different ways. The reason for solving it in different ways is vector approach, simple analytical approach, graphical approach, सब देखेंगे सर. आपको जो अच्छा लगता है. हम in acceleration we have simplified vectors. तो यहां पे भी vectors are nothing sir, लेकिन basic is required. तो यहां पे I have to express my gratitude to some people as I'm starting the subject. First, to all the authors from which I have studied. Next, my parents, my gratitude to my parents, my gurus from whom I learned, and I referred to NPTEL lectures of IIT Madras professor, थोड़ा high level के है वो, उनका भी लिया. And last but not the least, my daughter's teachers.
I took some of the concepts from physics lectures of my daughter. She is studying now, she is in 11th, she is in Fiji. So those concepts I took. So I am expressing my gratitude, though they are younger to me. I bow my head to them because I am taking from them. I have taken some concept, I have taken from their notes. Fiji के notes लिया, तो उनको भी मेरा सर झुका रहा हूँ. उनके concepts मैं लिया हूँ. I am thankful to them. So उनके questions भी थोड़े questions लिया. So उनको मैं उनका gratitude express करना चाहता हूँ सर. Yes, because they have done wonderfully. मतलब बहुत अच्छा किए सर वो. ये हुआ. अब बात आ गई सिलेबस की. Engineering mechanics basics. Engineering mechanics basics. Second. System of forces. Equilibrium. Fourth. Kinematics. Fifth. NLM. Basics में I'll be covering vectors. Then sixth, friction. ये पेन सही क्या हुआ? हाँ, friction. एक सेकंड प्लीज, इसको थोड़ा मैं. Am I audible, sirs? Circular and rotary motion. या इसमें rolling motion भी कर देंगे. Okay, right. Then virtual work. मैं order में नहीं लिख रहा हूं sirs, so don't think that it is in order. Virtual work. Then work energy principle. Impulse momentum equations, इसमें collisions भी पढ़ेंगे, है ना? And something about SHM also, थोड़ा बहुत vibrations का introduction. Lagrange's equation, Lagrange's system है, ये सब cover करेंगे. This is my broader syllabus. Roughly, I take 60 to 70 hours. Sorry. ये तो बहुत ही important है. Stresses and structures. I'm really sorry, sir. माफ करो. अगर कुछ छूट गया है तो kinematics बोला ना रे ललित. Kinematics में ही आएगा वो projectile motion. Kinematics में ही आएगा वो projectile motion. Rectilinear, curvilinear, सारे इसी में आएगा. ठीक है? ये बहुत important है सर. ये ही है राज. ये और ये. कोई बात नहीं. चलो. Okay, sir. Maybe it depends. Sikandar, thank you. The problem is civil के बहुत सारे students wait कर रहे थे. नम्रता क्या बोले? Thank you. अब praising थोड़ा मत करना, क्योंकि ना थोड़ा अगर praise करेंगे तो मैं झाड़ पे चढ़ूंगा और आपने नीचे से मारेंगे तो मैं गिर जाऊंगा. Please don't praise me. After the class you praise me. After the class. Wonderful, sir. Now. Yes, Akshay, you very good. देखो, ये ऐसा कवर करने की कोशिश कर रहा हूं. It's not some exam specific. I repeat, sirs, it's not exam specific. I'm giving you in the subject in totality. मैं कोशिश करूंगा कि सब्जेक्ट आपको पूरा देने की कोशिश करूंगा. You go for GATE, you go for engineering services, you go for IRMS, civil services means कुछ भी एग्जाम हो मैं कोशिश करूंगा. हाँ देखो, तो मैं पूछ रहा था एक्चुअली, तो यहाँ पे एक टेक्निकल प्रॉब्लम है.
कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो बोले कि हम सिविल को एक्सेस भी प्रोवाइड करेंगे। लाइव में थोड़ा मुश्किल है, तो कोर्स होने के बाद, course after the completion of this course, it will be given. I think I was told because many civil students approached me, sir, we want to watch this class, these classes, तो उनके लिए तो it will be made accessible, don't worry about that, okay? मैं कोशिश भी करूंगा उनसे पूछ के, ठीक है ना? Because ये हो गया. Now roughly number of hours. Now the $1 billion question is, what are the textbooks to be? सुनो, अब तनुज आप चुप बैठो, मैं मार डालूंगा. हाँ सुनो. Now the $1 billion question is, what textbooks are to be followed? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बोलूंगा सर, मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि सारे वेराइटीज आपको मिल जाए. अश्वनी बाबू थोड़ा रुको ना, मेरा सीक्वेंस क्या होता है? सिलेबस, नंबर ऑफ आवर्स, टेक्स्ट बुक्स, वेटेज, देन सब्जेक्ट इन द नेम ऑफ गॉड. ओके राइट. तनुष तो वो क्या है ना, वो अब मेरा दिल हो गया, वो मतलब ऐसा हो गया कि बिना मेरे से वो नहीं रह सकता, ऐसा हो गया उसका. तनुज का पूरा मतलब वो इतना ये हो गया, मतलब कुलकर्णी सर उसका जिंदगी कुलकर्णी सर चल रहा है. अब मैं क्या करूं? मैं तो कुछ नहीं किया मैजिक, लेकिन मेहनत भी कर रहा है. चलो सुनो सर केयरफुली, सुनो सर, लिसन केयरफुली प्लीज. अब देखो सर, ऐसा मत करो कि आई एम स्टार्टिंग वन सब्जेक्ट, अभी ये सब्जेक्ट कैसा हो रहा है आपको पता ही नहीं, मैथ्स क्यों बोल रहा है. You do please wait for 1 chapter, 2 chapters. So once it is over, जब आपको लगेगा कि अच्छा पढ़ा सकता, तब पूछो ना, प्लीज अभी मत पूछो. हाँ ना, प्लीज ऑब्जर्व यार, तो मेरा फ्लो बिगाड़ो मत सर. नाउ द $1 billion क्वेश्चन इज टेक्स्ट to be followed. I think there are so many good books. तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा, तो आप ये लीजिए, एनफ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाय टिमोशेंको. ये लीजिए, देखो ये वाला, ठीक है? किसी के पास सॉफ्ट कॉपी है तो अपने ग्रुप में डाल देना, अगर परमिशन है तो. मुझे पता नहीं वो क्या क्या रूल्स रहते हैं. जस्ट टेक दिस, बिकॉज एज अ टीचर आई हैव टू स्टडी सो मेनी बुक्स. So I just ask you to like go through Timoshenko. Just वो ले लेना, बाकी जरूरी नहीं है. ये हो गया सर, प्लीज, कोई बात नहीं. Wonderful. Now next is, what is the weightage given? Dear sirs, I don't know why students ask, sir, what is the weightage for this? What is the weightage for this? I think that question is for both, Lalit. For both. Yes, Lalit has asked one question. Is Timoshenko for concepts or for numericals? Both. क्यों both है? देखो क्यों both है? इधर देखो, इसका राज बताता हूं. जनरली स्टूडेंट्स बोलते हैं, सर जनरली यू रिकमेंड फॉरेन ऑथर टेक्स्ट बुक्स फॉर कॉन्सेप्ट्स एंड इंडियन ऑथर टेक्स्ट बुक फॉर न्यूमेरिकल्स. एक बार इधर देख लेना. टिमोशेंको यंग के बाद कौन है रे? कौन है? JB राव, सुकुमार कपी. मतलब इंडिया फॉरेन कॉम्बिनेशन, मतलब एक ही में आ गए सब. सबका रीजन है सर, ये ऐसा ही ये नहीं करता, सबका रीजन है सर. फॉर एवरीथिंग देयर इज अ रीजन सर, फॉर एवरीथिंग देयर इज अ रीजन. हाँ, भाविकट्टी इज गुड फ्रॉम न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज वेरी गुड फ्रॉम न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू. न्यूमेरिकल्स भाविकट्टी आप ले सकते हैं फ्रॉम न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू. हिबलर तो बाइबल सर. अब देखो, मैं एक ही बोल रहा हूं सर, कुमार बाबू, मैं क्लियरली आपको बोला कि आप टिमोशेंको पढ़ो बोला, फिर बाद में ये पढ़ना वो पढ़ना, तो मैं एक ही बताऊंगा, फिर मेरे से मत पूछो. आई सेड दिस इज द बुक दैट यू नीड टू फॉलो बोला, तो फॉलो. Otherwise, whatever the book you have, you follow. Please, it's a request to all of you. Someone said Ramamrutam.
तो ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के लिए आई डोंट रिकमेंड दोज बुक्स बिकॉज यू नीड कॉन्सेप्ट्स. Please let me explain one thing very clearly. Engineering mechanics is such a subject where so many concepts are involved. Notes शायद मेरे हिसाब से मैक्सिमम I'll try to cover all varieties. इसलिए आप देखेंगे एक बार फर्स्ट चैप्टर होने के बाद then you'll understand मतलब क्या varieties of questions देखें. And I'm sure that it will be a unique course. Believe me. आपको लग रहा होगा ये आदमी पहले फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा है, तो जब भी कोई नया सब्जेक्ट मैं अनअकैडमी पे लाया हूं वो हिट हो गया अभी तक. शायद उम्मीद है कि ये भी होगा. मैं सबकी इज्जत करता हूं, सबकी रेस्पेक्ट करता हूं, मेरे लिए सब रेस्पेक्टेबल है. तो प्लीज कृपया मेरा एक रिक्वेस्ट है, मुझे किसी से कंपेयर मत करना और मैं किसी को कंपेयर नहीं कर लेता हूं. तो अगर आपको मेरे में कुछ कमियां लगते हैं तो मुझे बता देना, पीछे मत बोलो, मेरे सामने ही बता देना. मैं ऐसे स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करूंगा. प्लीज. नाउ लेट्स सी द वेटेज. तो इफ आई गिव यू द वेटेज फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, डू यू थिंक दैट नेक्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू गेट फॉर सेम मार्क्स? मैं एक ही पूछ रहा हूं सर. If I give, say for example, this year mechanics weightage was 4 marks in GATE, can I say that same 4 marks will come for the next year? इसलिए ये पूछना बंद कर दो. और लोग अच्छा वीडियोस बना लेते. कैसा? IIT Kharagpur is conducting this examination. What are the probabilities? Which subject is given more weightage? Views बढ़ा लो. मजाक है यार ये. ऐसा है तो लोग वही पढ़ लेते हैं फिर. प्लीज इसके पीछे मत पड़ना, ये बहुत धोखा है. सो हाँ, एक एवरेज पिक्चर आई गिव यू. एक एवरेज पिक्चर आई गिव यू. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अराउंड 4 to 6 मार्क्स आ सकता है. गेट की बात कर रहा हूं, गेट की बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन ये बोलना गलत है सर. क्यों गलत है? थियरी ऑफ मशीन्स, concepts of mechanics are involved. Strength of materials, concept of mechanics is involved. Then what I say, machine design, concepts of mechanics are involved. Vibrations, mechanics concepts are involved. तो पूरा पुट करेंगे, शायद it may go to 15. It's not an exaggeration. It's not an exaggeration. Free body diagram, mechanics का ही है. In machine design, you'll be drawing a free body diagram. Belt hai, belt drive. You'll be drawing free body diagram. Some people put it in machine design, some people put it in mechanics. तो इसलिए बोल रहा हूं मैं, be careful with this subject, sir. Be careful with this subject, sir. Okay, now, what about engineering services? Roughly 5 to 7 questions. मतलब 5 to 7 questions. बहुत इंपॉर्टेंट है सर. ये हो गया. एंड अगर मेंस की बात कर रहे हैं, 45 मार्क्स टू. सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूं, टू 60 मार्क्स. पहला क्वेश्चन मैकेनिक्स का ही होता है मेंस में. So this subject has a huge weightage. तो हम वेटेज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट सीखने के लिए पढ़ रहे हैं. तो मेरे तरफ से it is a gift to you people. Tomorrow you may be teaching. अभी तक देखो सर, my students they started teaching thermo क्योंकि मैं पहले थर्मो ही पढ़ाता था. अब देखो, now you are going to see maybe next year मैकेनिक्स के बहुत सारे आप में से टीचर्स बनेंगे. कुछ लोग IIT JEE एडवांस मेंस में पढ़ाएंगे. तो ये मेरे तरफ से आपको गिफ्ट है, तो मिस मत करना इस गिफ्ट को मिस मत करना. चलो आगे बढ़े. नो वेटेज इज गिवन, रफ नंबर ऑफ आवर्स एंड
it will be a 3 hours class. It will be a 3 hours class. Initially, maybe for a few days, I may be taking 2.5 hours, but later on, it will be 3 hours class. Wonderful, sirs. Wonderful. एक प्रयास होगा सर मेरे क्लासेस में. There is one continuous effort. That effort is simplification of the subject. एक तो बहुत efforts रहेंगे कि it is simplification of the subject, because there is a hype कि mechanics is toughest, theory of machines is toughest. ऐसा कुछ एक है, लेकिन उसको हम निकाल देंगे सर, कोशिश करेंगे सर. We'll try our level best to remove that. चलो ये सब हो गया. Now I have given you the weightage, I have given you rough number of hours, I have mentioned the syllabus and recommended textbooks. Now let us start the subject in the name of God. Every subject we start in the name of God. So let us start a brand new subject in the name of God. एक बार ठोको ताली, यो मारो एक बार, मारो. Come on, come on, come on, come on. Chalo. Now we are starting our beautiful journey. We are starting a beautiful journey. Chalo sirs. Let's start. Let's start. Mechanics. Please be serious. Mechanics. What exactly is mechanics? It is a science which deals with, let me explain, sir. Let me write, then I'll explain. It is a science which deals with state of motion or a rest under the action of forces. Right. Listen, it is a science which deals with the state of motion or rest under the action of forces. The first thing here is, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये फोर्स होता क्या है? Okay, leave it, sirs. Leave it. First, let me give the definition. What is mechanics? It is a science which deals with either the state of rest or motion under the action of forces. एक बात समझ में नहीं आया सर. क्या समझ में नहीं आया सर? ये फोर्स होता क्या है? देखो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी. वेट सुमित, वेट. तो इस पे थोड़ा फोकस करो. लेट मी फोकस ऑन दिस. देख लेंगे, इसका भी देख लेंगे थोड़ा. अभी क्वेश्चन मार्क में है, सर आई डोंट नो व्हाट इज अ फोर्स. लीव इट. तो मतलब जब भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट नाउ आई डोंट नो व्हाट इज फोर्स, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग फोर्स, you may see a particular body which you are considering. It may move, or if it is moving, if I apply opposing force, it may come to rest. So all these you are studying in your mechanics. Science. Can you tell me what is science? It is based on some natural laws. It is based on some natural laws. Under those conditions, our system should obey those laws. It is based on some natural laws. Nature के थोड़े laws होते हैं. And our system under some conditions, under particular conditions, should obey those laws. अब देखते हो laws क्या क्या है. Yes, हर एक law, parallelogram law है, triangle law है, पॉलीगन लॉ है,
उसके बाद क्या है, न्यूटन्स लॉज है, उसके बाद न्यूटन्स 3 लॉज नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है. इट हैज टू फॉलो दोस लॉज. दैट इज अवर साइंस. हम भी नेचर को फॉलो करना है सर, लेकिन नहीं फॉलो करते, तो आप वायलेट कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. नाउ दिस मैकेनिक्स इज classified into rigid body mechanics and deformable body mechanics. Yes. अब देखते हैं सर. Indeformable will be studying SOM, will be studying fluid mechanics. Fluid में क्या होता है, continuous deformation होता है. Under the action of shear force, the fluid deforms continuously. In SOM, there is a deformation, but we are studying about solids, deformable solids, mechanics of solids. That deformation is up to some extent. After that, there is no deformation. I'm not talking about creep or so. तो थोड़ी देर के बाद वो deformation. For example, it's something like this. हम chair पे बैठे हैं सर. We are sitting on a chair. Initially, if you observe, under the action of load, there is a small deformation of a leg. चेयर का पैर जो होता है थोड़ा डिफॉर्म होगा. क्या वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म हो रहा है? नहीं. लोड तो है. अगर कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होगा तो आप नीचे गिर जाएंगे, ऐसे चेयर को यूज नहीं करेंगे, वो डिफॉर्म होकर रुक जाएगा. लेकिन फ्लूइड, wherever there is a shear force, it flows, it deforms continuously, जो हम फ्लूइड में पढ़े थे. So deformable bodies भी पढ़ेंगे मैकेनिक्स में, क्योंकि what is mechanics? It is the deals with motion or rest under the action of forces. So under the action of shear force, fluid is moving continuously, deforming continuously. वो भी स्टडी करना है. That is also mechanics. देखो, for example, now there is a beam. I have applied a load. So under the action of this load, मान लो ये थोड़ा bend हो गया. Yes, under the action of forces, this member is, we are studying the action under the action of these forces, how it is deforming. ये पढ़ रहे हैं हम SOM में. It is also mechanics. Then why separately engineering mechanics? Great sirs. Great sirs. जब भी आप स्टार्ट करते हैं सर सब्जेक्ट, if I start with complex concepts, will you read? Will you read? No. सर क्वेश्चन जब पूछ रहा हूं तो आंसर दीजिए सर. So will you read? Never sirs. Never. भाग जाएंगे आप, भाग जाएंगे सर. तो इस साल का पहला सब्जेक्ट में स्टार्ट किया सिंप्लीफाई करने के लिए, मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. ये पढ़ रहा है सर. सर नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं. पहले हम देखेंगे रिजिड बॉडी होता क्या है. रिजिड बॉडी होता क्या है. For example, take some body of any shape, any shape. ये एक पॉइंट लीजिए बॉडी के अंदर, ये एक पॉइंट लीजिए. Let this be A, let this be B. अभी फोर्स का डेफिनेशन नहीं दिया सर. फोर्स का प्लीज उत्कर्ष, प्लीज आप कमेंट मत करना सर. I have not given the definition of force. थोड़ा इंतजार करो सर. A और B है. Where are A and B? In the body. Please don't think that every time I am taking points in the body, it can be on the body also. It can be on the body or in the body. ये कब है सर points? Before the application of any external force. हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं किए. Now you apply force. Don't worry, I will tell you what exactly is a force. Please don't worry. तो अभी तो एक ब्लाइंड आइडिया तो है ना रे. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ब्लाइंड आइडिया तो है ना, ये फोर्स है, फोर्स अप्लाई. एटलीस्ट ब्लाइंड आइडिया तो है ना, ब्लाइंड आइडिया फोर्स का, ब्लाइंड. चलो आई हैव अप्लाइड फोर्स F1, F2, जो भी है अप्लाई किया. ध्यान से सुनो. We have applied forces. Even under the application of force, the distance between any 2 points
in the body or on the body do not change. सर ये थोड़ा डाउट आ रहा है सर. गुड क्वेश्चन. अब देखो सर, ध्यान से सुनो. Whenever we apply force, definitely there will be deformation. Agreed or not? Agreed or not? होगा ही होगा सर. There will be deformation. There will be deformation. When there is a deformation, there is a change in the distance between 2 points under consideration. जब बॉडी को आप अप्लाई फोर्स अप्लाई किए तो जाहिर सी बात है कि दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस चेंज होगा. But you said rigid body, there is no change. Sir, let me put it this way. We have to make some idealizations. What do I mean by idealizations? Without that, it is difficult to carry out. एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना है मुझे, एक प्रैक्टिकल फिजिकल एंटिटी को, एक प्रैक्टिकल फिजिकल थिंग को मुझे उसका एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना है. So if you want to make a mathematical model, for example, आप क्या करते हैं सर? For example, gear है, there are teeth on the gear. So every time are you drawing all teeth? Just you draw pitch circle. That's it ना? Yes or no, sir? तो ये एक idealization हम करते हैं सर. Same is the case. So एक mathematical model develop करने के लिए we make some idealization, we simplify. तो rigid body तो होगा ही नहीं. There will be deformation under the action of force, no matter more or less. ध्यान से सुनो. अगर deformations, if the deformations are small with respect to size of the body का size है, उस size के respect से, with respect to size of the body, if the deformations are very very small, we treat it as rigid. इससे बहुत फायदे हैं सर. कुछ बता सकते हैं सर फायदे? बोलेंगे फायदे हैं. रिजिड बॉडी फायदा है, रिजिड बॉडी फायदा है. क्या फायदा है? इंटरव्यू में पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? पॉइंट नंबर 1. लिसन सर. Let us take deformable bodies. I have applied a load. सुनो. Let us take a deform. सर इंटरव्यू के साथ साथ पढ़ेंगे सर. There is one body. There is another body. ध्यान से सुनो. Body A, body B. I have applied same force. सुनो. I have applied same force. Assume that it has deformed up to this, and this has deformed up to this. Are the deformations same? No, there is a deformation. ये deformation किस पे depend कर रहा है? Is it depending on force? No. Even though the force is same, the deformations are not same. It means it is depending on the material. अगर मैं rigid body का assumption करूंगा, if I make the assumption of rigid body, for example, this is body 1, this is body 2. Listen, sirs. This is body 1 and this is body 2. I have applied a force. No deformation. Rigid body का मतलब क्या है? There is no change in the distance between any 2 points. So if it is A, it is B. If it is A, it is B. There is no change. Exactly the same. So under the action of this external force, both are behaving same. So the best or the biggest advantage of rigid body analysis is it is independent of the material. ये इंपॉर्टेंट बात है. तो rigid body का खासियत क्या है ना? Whenever I say rigid body, the first thing is you don't have to consider which body is that. Is it elastic? Is it rubber? Is it cork? Is it क्या बोलते हैं mild steel? ना, सिर्फ rigid body बोलेंगे. कुछ भी रहने दो, rigid body. ये एक एडवांटेज है. धीरे धीरे और एडवांटेजेस बताऊंगा रिजिड बॉडी के. समझ में आया सर? तो मेरा फर्स्ट assumption in mechanics is the body is treated as rigid. अरे होगा या नहीं होगा?
छोड़ दो, इन रियलिटी बॉडी मे नॉट बी रिजिड। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद रियलिटी से थोड़ा दूर जाते हैं, फ्रॉम रियलिटी विल बी अ बिट फार। तो वो रियलिटी को क्लोज आने के लिए वी स्टडी डिफॉर्मेबल बॉडीज सॉम पढ़ेंगे रे, मैकेनिक्स पढ़ेंगे, थोड़ा गलतियां करेंगे, बॉडी डिफॉर्मेबल है फिर भी रिजिड लेके करेंगे, लेकिन विल बी, मतलब अगर 100 रीच होना है तो विल बी रीचिंग 75, गलत नहीं है ना सर? अरे if my aim is 100, if I reach 70, there is nothing wrong na, then I'll put some more efforts to reach remaining 30. So interviews में पूछेंगे what is the advantage of treating the body as rigid body, then your answer should be the body is treated as rigid body, so when I treat it as a rigid body there is no need for me to take which material it is made of, that's it, there is no problem at all. Very good sir, I'll give you some more advantages. One more thing, dear students, one more thing, सब लोग जिंदा है रे, all of you, are you there? सब लोग जिंदा है या मर गए सर? दीक्षा तो मर गई ना, देखो सर, वाह, देखो केयरफुली देखो, यहां तक हो गया सर। सो रिजिड बॉडी का एक एडवांटेज हो गया, नो डिफॉर्मेशन। नाउ प्लीज लिसन सर, इन मैकेनिक्स वी डील विथ ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस। सर आपने फोर्स 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 बोल रहा है, लेकिन फोर्स का मीनिंग ही नहीं बताया, कोई बात नहीं सर। सो आप बताइए, व्हाट इज मैकेनिक्स? It is a science which deals with the state of rest or motion of rigid body under the action of external forces. अब मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मैकेनिक्स, ओवरऑल मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्या है? ओवरऑल मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्या है? एनी बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, एनी बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। एंड देखो मैकेनिक्स में, जनरल मैकेनिक्स में, आई नेवर सेड रिजिड बॉडी। अरे यूजलेस फेलोस, आप देखो यहां पे कहीं डिड आई यूज द वर्ड रिजिड बॉडी? नो। यहां पे कहीं आई यूज एक्सटर्नल फोर्सेस? नो सर। यहां पे देखना, प्लीज 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 इधर देखना डियर स्टूडेंट्स, ये देखना, आई नेवर यूज द वर्ड एक्सटर्नल फोर्स, आई नेवर यूज द वर्ड इंटरनल फोर्स, आई नेवर यूज द वर्ड रिजिड बॉडी। आई सिंपली सेड इट इज द साइंस व्हिच डील्स विद द मोशन और रेस्ट ऑफ body under the action of forces. यहाँ पे forces, it may be internal, it may be external. I'll explain what is internal, what is external. यहाँ पे body बोला, it may be rigid or deformable. तो mechanics is a broader term. उस mechanics में सब branches है, हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, हमारा सॉम, हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स आएंगे। तो अब बोलो क्या पढ़ने जा रहे सर? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स? इट इज द साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी और इट डील्स विद द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अब मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बात करूंगा तो बॉडी के प्लेस में रिजिड बॉडी आएगा और फोर्सेस के प्लेस में एक्सटर्नल फोर्स आएगा। अगर बॉडी है, सिंपली बॉडी है, फोर्सेस है, तो जनरल डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स, इट कैन बी फ्लूइड मैकेनिक्स, इट कैन बी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। नहीं आ रहा सर आपको समझ में? नहीं आ रहा सर आपको समझ में? आया नहीं रे। सो नाउ आई विल टेल व्हाट एग्जैक्टली इज योर engineering mechanics. It is actually applied science, sir. Engineering okay sir. It is the science which deals with the state of rest or motion of anyone motion of rigid bodies.
वंडरफुल सर, वंडरफुल सर, वंडरफुल। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है सर? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है सर? आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। अब थोड़ा पेशेंस रखो। व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सटर्नल इंटरनल, ऐसा क्या है? इधर देखो सर, देयर इज अ मेंबर। अभी इस सब्जेक्ट में we will not talk about stress, strain, deformation, elongation. Now, one student has asked me a question. सर जी, मैं बोला हाँ, बोलो बेटा। तो वो स्टूडेंट ने बोला सर आप तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। मैं बोला हाँ, तो फिर क्या डाउट है? तो सर यहाँ पे तो आप स्प्रिंग अटैच किए, यहाँ पे तो आप देखो, दिस इज एक्चुअली अ स्प्रिंग। सर यहां पे तो स्प्रिंग अटैच किए, स्प्रिंग इज अ डिफॉर्मेबल वन, स्प्रिंग इज अ डिफॉर्मेबल वन। वेरी गुड, ध्यान से सुनो सर। आई विल सी जस्ट व्हाट स्प्रिंग इज डूइंग ऑन माय रिजिड बॉडी। मैं स्प्रिंग को नहीं पढ़ रहा हूं सर, आई एम नॉट स्टडीइंग स्प्रिंग। हाउ मच फोर्स इट इज एक्सर्टिंग ऑन माय रिजिड बॉडी। ये मेरा बॉडी है, देखो मैकेनिक्स में मैं इस पे फोकस कर रहा हूं, इस पे फोकस कर रहा हूं, स्प्रिंग पे नहीं सर। ये स्प्रिंग इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। सिमिलरली गुलेल वाला देखो इधर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। ये कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है मेरे हाथ पे, समझ गए ना? या फिर ये स्टोन है, कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो देख रहे हैं सर हम। Please understand carefully. So yes, I am considering rigid bodies only. I am considering rigid bodies only. Please बताइए, is it clear sir? बोलो sir, is it clear? तो ये मत सोचना सर स्प्रिंग डाल दिए, स्प्रिंग इज नॉट अ रिजिड, इट इज डिफॉर्मेबल। तो हम वो स्प्रिंग नहीं देख रहे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट स्प्रिंग ऑन माय रिजिड बॉडी। समझ गया ना? अब बोलेंगे सर मेरा हाथ भी तो डिफॉर्मेबल है ना, थोड़ा अगर फोर्स लगेगी तो दब जा रहा है। अरे इतने बड़े हाथ में इतना छोटा सा डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल है, नहीं आया समझ में? गुलेल को जब मैं खींचा, इतने बड़े हाथ में छोटा सा डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल है, समझ गए? अब देखो, प्लीज लुक एट माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी अप्लाई दिस फोर्स। अब ये बताओ ये कौन सा फोर्स है सर? इज इट एक्सटर्नल और इंटरनल? इट इज एक्सटर्नल। In engineering mechanics, we'll be dealing with the effect of this force only. So now observe here clearly. Let me cut this. इसको कट कर देंगे सर। Let me cut this. Let me cut this. Now say this is section XX. Let me cut this. Is it in equilibrium? Yes, it is in equilibrium. Now देखो सर, देखो अब आप बताइए डियर स्टूडेंट्स, अब आप बताइए this is our force F. Is it in equilibrium? Absolutely no, sirs. Absolutely no. It's not in equilibrium. But already it is in equilibrium. Means there is a resisting force developed. And अगर आपको ये equilibrium में रहना है तो ये भी F होना ही है। ये कहां से आया सर? I have not applied sir. इस सेक्शन पे अंदर से जनरेट हुआ, अंदर से। फॉर एग्जाम्पल आप एक अपने फिंगर को यहां फिक्स है, खींचो खींचो, दिस इज एक्सटर्नल बट यू आर फीलिंग समथिंग इंटरनल। यू आर, देखो ये करो रे, मैं जो बोल रहा हूं वो करो, इसको पुल, अरे पेन हुआ, देखो वो इंटरनल है। मींस इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वी आर नॉट स्टडीइंग दिस, दिस इज इंटरनल। दिस विल बी स्टडीड इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ये यहां पे नहीं पढ़ेंगे। दिस इज योर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड दिस इज इन आवर सॉम विल बी स्टडी। सो शायद आपको समझ में आया होगा। शैल आई प्रोसीड सर? Great. Great, sirs. Now observe here. Observe here. Our physical quantities are categorized into, अब धीरे धीरे फोर्स की तरफ आएंगे सर, फोर्स की तरफ आएंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऐसा डेवलप किया गया सर। एरिस्टोटल कौन है सर? एरिस्टोटल, ही इज अ फिलोसोफर, ही इज अ फिलोसोफर। एरिस्टोटल इज अ फिलोसोफर। तो उनको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से क्या लेना देना है सर? यू नो, लीवर का पहले इस्तेमाल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट, यस, ग्रीक फिलोसोफर
एरिस्टोटल साहब यूज्ड, उसके बाद आर्किमिडीज, उसके बाद गैलीलियो, उसके बाद न्यूटन साहब. एंड वॉट एवर वी आर स्टडिंग, yes, definitely under the external force. For example, Nitish has asked one question, sir, what is the advantage of studying only external forces? Very good. इधर देखो, इधर देखो, बहुत अच्छा सवाल पूछा सर नीतीश ने. क्या एडवांटेज है सर? वेरी गुड. आप एक स्ट्रक्चर बनाए सर, एक बिल्डिंग बनाए सर, एक ब्रिज बनाए सर, हाउ मच लोड इट इज रेजिस्टिंग, कितना एक्सटर्नल लोड ले रहा है, पढ़ना जरूरी है या सिंपली ऐसे डिजाइन कर दिए? ब्रिज को डिजाइन करना है तो इतना जगह बचा है, दिस मच प्लेस इज अवेलेबल, उस प्लेस को हम उस प्लेस पे ब्रिज डालेंगे, कुछ भी डाल दो उस पे, ऐसे करेंगे? या फिर कुछ एनालाइज करेंगे, हाउ मच एक्सटर्नल लोड इज देयर, हाउ मच विल इट रेजिस्ट? नहीं चाहिए सर. आपका बिल्डिंग है, एक ही बिल्डिंग छत के ऊपर 10,000 लोगों को लाके बिठाओ, बिठाओ. यस, ही सेड सर दे आर नॉट रिजिड ना सर. वेरी गुड. मैं क्या बोला सर रिजिड का? कंपेयर्ड टू डायमेंशंस, बॉडी के डायमेंशंस के कंपैरिजन में, इफ द डिफॉर्मेशन इज वेरी स्मॉल, वी टेक इट, वी आइडियलाइज इट एज अ रिजिड बॉडी. बोला नहीं बोला सर? और एक बात है सर, वो तो स्टैटिक कंडीशन में हो गया, दैट इज मैकेनिक्स अंडर स्टैटिक कंडीशंस. लोकोमोटिव जा रहा है, गाड़ी जा रहा है, कितना फोर्स लगाने से गाड़ी को खींच सकते हैं हम? चाहिए या नहीं चाहिए सर? गाड़ी अपने आप जा रहा है सर. हाउ मच फोर्स आई नीड टू अप्लाई, व्हाट पुलिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड, व्हाट एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड सो दैट आई कैन कॉज द मोशन ऑफ द व्हीकल? नहीं चाहिए सर. सैटेलाइट को लॉन्च करना है ऑर्बिट में, कितने फोर्स से लॉन्च करना है? नहीं चाहिए सर. नहीं चाहिए सर. चाहिए सर. दैट्स व्हाई वी स्टडी. चेयर के ऊपर बैठ रहे आप, चेयर को डिजाइन किए, मैं खली को लाके बिठाऊंगा चेयर के ऊपर, मैं खली साहब को लाके बिठाऊंगा चेयर के ऊपर, आपका जो पतला सा चेयर है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स. खत्म. विल इट रेजिस्ट? विल इट रेजिस्ट? तब मैकेनिक्स याद आएगा. सर ने बोला था मैकेनिक्स पढ़ने के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए, एक्सटर्नल फोर्सेस पढ़ने के बाद इंटरनल को आएंगे हम. वेरी गुड सर. न्यूटन साहब का जो मैकेनिक्स है ना, उसको बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स. अब वही पढ़ेंगे सर हम. लेकिन आइंस्टाइन साहब आने के बाद थोड़ा गड़बड़ कर दिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स को. अब वो क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ आ गए. लेकिन हम, yes, still these are relevant, still Newtonian mechanics, classical mechanics is relevant. तो मैं वही पढ़ाऊंगा आपको, सिलेबस में वही है, हम वही पढ़ेंगे. वो एक्चुअली एप्लीकेबल भी है, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम उतना लाइट के स्पीड से नहीं जा रहे सर. तो आप बोलेंगे सर इंस्टेंस थ्योरी इज रेलेवेंट ना, व्हाई आर यू नॉट टीचिंग इंस्टेंस थ्योरी? मैं अभी उतना स्पीड से बुलेट ट्रेन से नहीं जा रहा हूं. मैं बात कर सकता हूं बुलेट ट्रेन के लिए, प्रैक्टिकल अप्लाई करना मेरे से नहीं हो रहा सर. उस स्पीड से मैं नहीं जा रहा हूं सर. मेरे जो स्पीड्स है वो नॉर्मल स्पीड ही है सर. इसलिए मेरा क्लासिकल मैकेनिक्स स्टिल वैलिड है सर, बिकॉज हम उतना अभी नहीं जा रहे सर. समझ में आया सर? समझ में आया सर? स्टिल वी आर नॉट गोइंग एट दैट स्पीड. अगर वो स्पीड से जाएंगे, क्या पता कल आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे न्यूटन को भूल जाके दे मे बी स्टडीइंग आइंस्टाइन्स मैकेनिक्स. हु नोस? वंडरफुल सर, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल. चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर, आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं. माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक इज एवरीथिंग क्लियर? यहां तक इज एवरीथिंग क्लियर? Till now is everything clear, sirs?
वंडरफुल सर, वंडरफुल वंडरफुल। आराम से अब मैकेनिक्स पढ़ेंगे। विल बी डीलिंग ओनली विद एक्सटर्नल फोर्सेस, नो इंटरनल इफेक्ट्स। सो इफ आई अप्लाई फोर्स, व्हाट इज हैपनिंग? अब देखो सर, फोर्स की तरफ आ रहे हैं हम धीरे धीरे। डियर स्टूडेंट्स, basically our physical quantities are categorized into scalar, vector। एक्चुअली मैं राइट शब्द यूज करूंगा टेंसर, आपको सॉन्ग में पढ़ाया था, ध्यान से सुनो सर। स्केलार शब्द देखो सर, स्केल मतलब एक स्केल से क्या करते हैं आप? मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? कुछ वैल्यू, क्वांटिटी। देयर आर सम क्वांटिटीज वेयर यू नीड ओनली वैल्यू, दैट इज एनफ। फॉर एग्जाम्पल मास 30 ग्राम, माउस है 27 ग्राम, ये रिमोट है 76 ग्राम। वेरी गुड। और कुछ चाहिए सर? डू यू नीड एनीथिंग मोर? डू यू नीड एनीथिंग मोर? एनफ। Such quantities where you need just magnitude, just a value, we call them as scalar quantities। बहुत ही अच्छा है सर। मास, लेंथ, टाइम। अब इसका डेफिनेशन मैं कैसे दूंगा सर आपको? यू कैन ओनली फील मास 30 ग्राम, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर वॉट एवर इज प्रेजेंट, इट इज 30, मतलब सम कोरिलेट करेंगे 30। लेंथ है सर, आई सेड दिस लेंथ इज maybe some 2.54, 1 inch is 2.54 centimeter, so maybe 12-13 centimeter है। very good, just you will get an idea if it is 10 centimeter, oh this much। but अब मैं definition क्या दे सकता हूँ सर उसको? just you have to feel it। time क्या है? 8:30 बस। so just magnitude is enough। अब देखो सर, अब देखो, there are some things apart from value, we need other things also। for example, बहुत carefully देखना, before we go to this, let me define force। अब आप बताइए what is a force? आपको क्या समझ में आता है सर फोर्स के बारे में? एनीवन, आप बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? ओह देखो, लेंथ बोल रहा हूं, मैं लेंथ बोल रहा हूं, लेंथ का कोई डायरेक्शन नहीं बोल रहा हूं, मैं लेंथ बोल रहा हूं। आई सेड लेंथ। बचपन में दिव्यांशु लेंथ बोल रहा हूं सर, आई सेड लेंथ। तो कभी आप लेंथ को आप 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव एक्स ऐसा बोले, इसका लेंथ है, अब बोलो क्या बोलेंगे? इसका लेंथ है, ऐसा है 15 सेंटीमीटर, ऐसा है 15, ऐसा है 15, ऐसा है 15, ऐसा है 15, समझ गए ना? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉज। आप बताइए, समथिंग एक्सटर्नल एक्ट अपॉन विच मे प्रोवाइड मोशन और ओके पुश और पुल। मैग्नीट्यूड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सर देखो सर, बहुत सिंपल सी बात है सर, छोटे छोटे चीजें इंटरव्यूज में बहुत मैटर करते हैं। फोर्स इज, इट इज द एक्शन ऑफ, वेट अब बस करो, ऑफ वन बॉडी ऑन अदर बॉडी, यहां तक तो ठीक है, विच यहां पे whenever I'm talking bodies, I'm talking about rigid bodies। See the definition, action of one body on other body which tends to change। Sir, why did you underline the word tends to change? ध्यान से सुनो, देखो एक बार, this is one body, this is another body। देखो, for what is force? It is the action। ये एक ऐसा एक्शन है
उस एक्शन के कारण बॉडी के स्टेट को चेंज करेगा। बट यू हैव नॉट कॉट द वर्ड टेंस। मैं ये कभी नहीं बोला कि फोर्स बॉडी के स्टेट को चेंज कर रहा है। इट टेंड्स टू चेंज, मतलब इट हैज द कैपेसिटी, मतलब चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट केयरफुली, look at, I have applied a force. Is it moving? It is at rest. It is at rest. I have applied a force. Is it moving? Is it moving? Is it moving? No. But यही फोर्स अगर एक हल्के से बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो विल इट चेंज? यस। मतलब फोर्स तो सेम है। मान लो फोर्स इज 1 न्यूटन on this body, but that same force is causing the motion on this, but it is not causing the motion. It has the capacity, tends to change, कर सकता है। अगर बॉडी मोशन में है, देखो फोर्स का खासियत क्या है? Now there is a force, it's moving. Yes, is it changing the state? Yes, it was at rest, now it is changing the state. It is the action which is changing, but earlier it's not changing, but it has the tendency मतलब क्या है? कर सकता यहां का मतलब। Now look at, already it is moving, now I apply. There is a possibility of bringing this body to rest. Now it is moving, I apply light force, मतलब ब्रेक मार रहा हूं तो क्या हुआ सर? स्लो डाउन हो सकता है। मतलब इट इज टेंडिंग टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता, अगर मोशन में है तो और ज्यादा मोशन में ला सकता। इफ देयर इज अ फोर्स ऑफ 20, इफ आई अप्लाई 50, इट विल मूव फास्टर। इफ देयर इज अ फोर्स ऑफ 20, इफ आई अप्लाई 20, it will come to rest. So have you understood, sirs? Force is that it is the action of one body on other which tends. ये वर्ड टेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो सर्स, अब देखो मेरे पास इतना बड़ा एक 200 किलो का एक ब्लॉक है। सुनो केयरफुली, आई हैव अ ब्लॉक ऑफ 200 kg. Now I have applied a force. Is it changing the state of the body? Is it changing the state of the body? No. But वो फोर्स को है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। अगर उसी को मैं और ज्यादा अप्लाई करूंगा तो इट विल चेंज। तो ये मत बोलना कि हमेशा फोर्स चेंज कर रहा है। नो, इट हैज अ टेंडेंसी। यस, नीतीश ने बोला लाइक वॉल। यस, लाइक वॉल। हैव अप्लाइड, but it's not moving. It has the capacity to move. और थोड़ा ज्यादा अप्लाई करेंगे तो मूव हो सकता है। So hope you have understood. What is force? It is the action of one body on the other which tends to, बोलो आप, ये मत बोला which changes the state of the body. ये गलत है सर, ये गलत है सर। अगर आप बोलेंगे which changes the state, no, you have to use the word tends to. Is it changing हमेशा? No sirs, no sirs. अगर देखो बॉडी एक फोर्स 20 से अप्लाई किया, वो मूव हो रहा है। अगर मैं 60 अप्लाई कर रहा हूं तो और तेज मूव होगा या नहीं होगा? सो मोशन है तो और मोशन हो रहा है, मतलब which tends to change the state of the body. बॉडी का स्टेट को चेंज करने का कैपेसिटी है। अब आप देखो सर, प्लीज लुक एट केयरफुली, डियर स्टूडेंट्स, आराम से देखना, बहुत केयरफुली देखना। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे सर यहां पे। हैव यू अंडरस्टूड फोर्स? व्हाट इज द फोर्स? इट इज द एक्शन ऑफ one body on the other which tends to change the state of the body. Very good. No, सुनो सर, अब देखो, हाँ देखो सर, अरे ध्यान से सुनो प्लीज। अगर मैं यहां पे अप्लाई किया, is the effect of this
and the effect of this, is it same or different? Let us assume this to be F1. Let us assume this to be F2. Is it same? Is it same? Is it same? Definitely it is not same. Definitely it is not same. In this, the effect is the downward motion. In this, the effect is, if it is fixed, it cannot move. तो क्या इंपॉर्टेंट है सर यहां पे बोलो? एक्शन इज डिफरेंट, द इफेक्ट इज डिफरेंट. तो डायरेक्शन मैटर कर रहा है. किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है मैटर कर रहा है. तो सिंपली आप 50 न्यूटन बोलने से मीनिंग नहीं है सर. देखो 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 क्यों नहीं. फॉर एग्जाम्पल, if I apply 50 like this, listen sirs, if I apply 50 like this, there is a different effect. And if the same 50 is applied like this, if same 50 is applied like this, the effect is different. Yes or no? But the effect is different. तो क्या जरूरी है सर यहाँ पे? Direction is important. Very good sirs. Great. So therefore our force is a vector quantity. So what is vector? Apart from magnitude, it has a direction also. Apart from magnitude, it has a direction also. यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर. अगर किसी भी क्वांटिटी को डायरेक्शन है, क्या वो वेक्टर होगा? देखो सर, आपसे नहीं पूछा सर. आई एम नॉट आस्किंग यू पीपल. आई एम नॉट आस्किंग यू पीपल. Force has magnitude, force has direction. Now for example, बहुत carefully देखो. There is a pipe. इस पाइप से फ्लूइड जा रहा है. और यहां फ्लूइड ऐड हो रहा है. Let this be first pipe, let this be second pipe, let this be third pipe. यहां से डिस्चार्ज आ रहा है. आप जानते हैं डिस्चार्ज क्या है? कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज कमिंग पर यूनिट टाइम. सो द डिस्चार्ज इज, लेट अस से इट इज 20 मीटर क्यूब पर सेकंड. यहां का 20 लीटर पर सेकंड. यहां पे डिस्चार्ज है, लेट अस से इट इज 30 लीटर पर सेकंड. कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिस्चार्ज हियर? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिस्चार्ज हियर? समवन सेड 50. हाउ सर? यस, यहां का जो वॉल्यूम आ रहा है, तो टोटल अगर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो यहां पे कितना होगा? 50. क्या ये डिस्चार्ज को डायरेक्शन है सर? यस, इट हैज अ डायरेक्शन. इट इज कमिंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड. इसका डायरेक्शन है. इट हैज अ डायरेक्शन. सिमिलरली करंट फ्लो हो रहा है I1, करंट फ्लो हो रहा है I2, करंट फ्लो हो रहा है I. व्हाट इज I? इट इज I1 प्लस I2. करंट का डायरेक्शन है, डिस्चार्ज का डायरेक्शन है, बट दे आर नॉट वेक्टर्स. सर ये क्या बता रहे सर आप? अभी तो बोले जिसका डायरेक्शन होता है वो वेक्टर. मैं ये नहीं बोला सर. ये नहीं, अभी कंप्लीट नहीं किया सर मैं. नियर क्वांटिटी हैविंग नियर डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन होने पर वो वेक्टर नहीं कहलाएगा. इट हैज टू फॉलो सर्टेन vector laws. What are vector laws? Like triangular law of vectors, parallelogram law of vectors, polygon law of vectors. It has to satisfy that. For example, अगर यहां पे एक फोर्स 20 न्यूटन है, अगर यहां पे फोर्स 30 न्यूटन है, it cannot be 20 plus 30 50. This is not 20 plus 30 50. It satisfies some vector laws. और ये अब देखो सर, मैं बताता हूं सर, सुनो केयरफुली, सुनो सर, सुनो सर, केयरफुली सुनो सर, बहुत केयरफुली सुनो. यहां से डिस्चार्ज आ रहा है. डिस्चार्ज जानते हैं ना, हाउ मच फ्लूइड इज फ्लोइंग. यहां पे डिस्चार्ज आ रहा है 50, यहां पे डिस्चार्ज आ रहा है 20, और यहां से दिस इज Q2 एंड यहां से Q है. बहुत केयरफुली देखना सर. इसको मैं ऐसे करूंगा सर.
You tell me, is this discharge the final discharge depending on the angle between them? क्या ये दोनों के एंगल के बीच में डिपेंड हो रहा है सर? Is it depending on the angle between these two? No, no. But हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे. If there is a force F1 like this, if there is a force F2 like this, the resultant of these two will be different. Let the angle be given. If there is a force like this, if there is a force like this, what is the angle? 90 degree. So इसका resultant, even though the magnitude is same, even though the magnitude of F1, F2 is same, as the angle is different, the resultant will be different. So please note down that quantities having magnitude and direction, and apart from that, which satisfy laws of vectors, we call them as vectors. So current is not a vector. Discharge, even though they have direction, they are not vectors because they do not depend, they do not follow the vector law. Simply algebraic summation hai ye. So I cannot say if the force is some 20, if the force is some 20, if the force is some 70, I cannot say it is 90. No, they follow, they depend on this angle. समझ में आया सर? प्लीज बताइए समझ में आया सर? My dear students, have you followed? So simply vector magnitude direction, scalar no, only magnitude. A quantity which has a magnitude and direction and which also follows laws of vectors, they are categorized as vectors. Force. We'll be seeing all these things. Momentum. ये सब हम different quantities को देखेंगे. Vectors में आते हैं. Vectors में आते हैं. Are we clear, my dear students? Are we clear? अब आगे बढ़ते हैं, sirs. Wonderful students of India. Wonderful students of India. Hope you understood. अब देखो, अब थोड़ा basics of vectors जाना है सर. Sir, if I please, my sequence is like this because हम तो सब पढ़ना है. क्या पढ़ना है सर? Civil services means everything. Subject देखना है सर मुझे. Direction cosines. 3-dimensional में कैसा represent करते हैं? What is the physical significance of dot product? What is the physical significance of cross product? What is the significance of directional cosines? ये सब बताऊंगा सर. लेकिन जहां जहां चाहिए उसी सीक्वेंस में पढ़ाते हैं. अब करंट विच क्वांटिटी, फ्लो क्वांटिटी बोलो, क्या बोलते हैं? यस, अब देखो सर, आराम से सुनो. लुक एट केयरफुली. Representation of a vector. जनरली हम क्या करते हैं सर? सुनो, जनरली हम क्या करते हैं? देखो एक बार, फोर्स है तो जनरली उसको ऐसा लिखते हैं, बोल्ड मतलब थोड़ा डार्क से, ये वेक्टर, और इसको ऐसे भी लिखते सर, वेक्टर क्वांटिटीज को. आइदर आई रिप्रेजेंट बोल्ड और ऐसे भी लिखते. सो वेक्टर को हम वी रिप्रेजेंट समथिंग लाइक दिस. व्हाट डज इट मीन? मतलब ये है उसका डायरेक्शन, इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड, HEAD. इसको बोलते हैं, we call this as head. This is the representation of vector. So AB वेक्टर है तो ये B, A से लेकर B. When I write AB, it means A से लेकर B तक, A से लेकर B तक. This is the direction. This is the direction. समझ में आया सर? This is the representation of vector. This is the representation. सुनो, AB का मतलब A कहां पे है सर? अरे useless fellows. AB का मतलब A कहां पे है? टेल पे है. B कहां पे है? हेड पे है. समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? अरे यार बोलो रे, बोलो सर. Now look at carefully. Let's go to okay, कोई बात नहीं. Saurabh, please take care. Saurabh, please take care. Please take care, Saurabh. Please go. Don't worry. Everything will be fine. अब देखो, let's go to equal vectors. सर मैं आपको बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा. Fixed vectors, sliding vectors, free vectors. Because vectors के बारे में जानना जरूरी है. Once we understand vectors ना, आप बोलेंगे
सर वेक्टर से ही पढ़ाओ पूरे क्वांटिटीज, जब मूवमेंट पढ़ाओगे ना, मूवमेंट ऑफ ए फोर्स, सर आप वेक्टर में ही पढ़ाओ बोलेंगे आप, कसम से बोल रहा हूं, जितना डर था उतना निकाल देंगे सर वेक्टर से। ओके ओके सर, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा सर। ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल। लुक एट सर, इक्वल वेक्टर्स, व्हाट डू यू मीन द इक्वल वेक्टर्स? फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनो, एक वेक्टर है, सुनो केयरफुली, ये वेक्टर है, सुनो सर, इसको हमारे पास तो हथियार है, ये कौन से वेक्टर्स है सर? ये सारे इक्वल वेक्टर, मतलब सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, उसका वैल्यू भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। फॉर एग्जांपल, इधर देखना रे, इधर देखना रे, इधर देखना रे, अरे इसको थोड़ा ऐसा लेके, क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है? यस। क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है? बोलो रे यस। देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस? सेम। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस? सेम। फॉर एग्जांपल, लेट इट बी थीटा, लेट इट बी थीटा। सो आर दे इक्वल वेक्टर्स? यस सर, दे आर इक्वल वेक्टर्स। समझ में आया सभी को? इक्वल वेक्टर्स का मतलब सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वंडरफुल सर। अब देखो, मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछूंगा, सेम वेक्टर को थोड़ा रोटेट करो सर। देखो देखो देखो, सेम वेक्टर को रोटेट करो। कैन आई कॉल दीज टू एज इक्वल वेक्टर्स? मैग्नीट्यूड इज सेम सर, मैग्नीट्यूड इज सेम। अरे यार, वेक्टर में डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डायरेक्शन इज डिफरेंट, दिस रोटेशन ऑफ अ गिवन वेक्टर will not change the magnitude, but it will change the direction. Therefore, they are not equal vectors. Hope you have understood. 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 Now, what is a negative vector? देखो देखो, ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव का मतलब, इधर देखो, एक वेक्टर ये है, इधर देखो रे, ये वेक्टर ये है, आई वॉन्ट माइनस ए, कुछ नहीं है। इसी को आप इधर देखो रे, देखो प्लीज लुक एट, इसी को ऐसा करो, एंड दिस इज अवर माइनस ए, नेगेटिव। ये वेक्टर क्या है? इसको बी लिखूंगा मैं, बी, इसको बी लिखूंगा, लेकिन ए और बी क्या है? मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसका मतलब 180 डिग्रीज दोनों में। समझ में आया सर? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगा सर, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। मैं आपसे एक सवाल करूंगा सर, यहां तक सभी को समझ में आया सर? एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एक देखो, देयर इज वन वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्यों इंपॉर्टेंट है सर? देखो एक बार, we'll be studying in machine design bolted joints, riveted joints under eccentric loading. So under eccentric loading, इधर देखो बहुत केयरफुली देखो सर, अब पता चलेगा आपको ये बंदा कैसे पढ़ाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, इधर देखो, देयर इज अ रिवेट, मान लो, ध्यान से सुनो सर, लेट अस अज्यूम दैट अब देखो सर, प्लीज लिसन सर, हम ये ऐसा पढ़ेंगे सर, कहां पे पढ़ेंगे? वेयर वी स्टडी दिस? वी स्टडी इन रिवेटेड जॉइंट्स, बोल्टेड जॉइंट्स, एमडी में। नहीं है समझ में? देखो, अब देखो 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 देखो, प्लीज आई गिव यू द ब्यूटी, मतलब थोड़ा फील आएगा, देखो आपको। हम बात करेंगे सर, सुनो सुनो केयरफुली, प्राइमरी शेयर, सेकेंडरी शेयर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, प्राइमरी शेयर, सेकेंडरी शेयर, वो सब भूल जाओ। देयर एक्चुअली व्हाट वी राइट, यू नो, अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। व्हाट इज cos थीटा? एंगल बिटवीन वेक्टर्स। पहला चीज आपको समझना है,
what is the angle between vectors? What is the angle between vectors? देखो यहां पे मैं थोड़ा ऐसे करूंगा सर, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे करूंगा। एक फोर्स ऐसा है, एक फोर्स ऐसा है। अब देखो डाउट आता है सभी को, सर क्या ये एंगल है वेक्टर, एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर है, क्या ये एंगल है? डाउट आता है सर। देखो फर्स्ट थिंग इज हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। कुछ मत करना सर, कुछ मत करना। सो एक सेकंड को, एक सेकंड को कुछ मत करना। अगर अब मैं दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करूंगा, इधर देखो, लुक एट, कंफ्यूज करूंगा, बहुत ही कंफ्यूज करूंगा। एक ऐसा है और एक ऐसा है। लुक एट, से दिस इज वेक्टर ए and this is vector B and this is the direction. Let this angle be some 130 degree. Now the question is, what is the angle between vectors? बहुत इंपॉर्टेंट है। चुपचाप बैठो, मैं आपको एक लॉजिक दूंगा, चुपचाप बैठो। मीटिंग पॉइंट कहां है सर? दोनों वेक्टर्स कहां मीट कर रहे हैं सर? Where are these two vectors meeting at this point? उस पॉइंट से you draw vectors in from the intersecting point, you draw vectors in such a manner that they move away from the point, that they move away from the point. इधर देखो, देखो, but इधर देखो रे, it is coming to the point, यहां पे to the point। अब यहां से इधर देखो, यहां से कुछ नहीं है, सेम लाइन ये होगा सर, समझ में आएगा ये। अब ये डायरेक्शन देखो, यस। अब बताओ सर, इस पॉइंट से इज इट मूविंग अवे? यस। अरे सेम नहीं तो वेक्टर है, कैन आई कॉल दिस इज सेम? यस। व्हाट डू मीन बाय इक्वल वेक्टर्स? ये तो बी है, सेम लेंथ ड्रॉ करो, सेम लेंथ, आउटवर्ड, यस। अब देखो, फ्रॉम दिस पॉइंट इज इट मूविंग अवे? यस। फ्रॉम दिस पॉइंट इज इट मूविंग अवे? This is the angle between vectors. अब आप बताइए what is the angle between vectors? And ये total angle तो 180 होगा। आप तो जानते हैं this is 180, 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 तो ये already 130 है, तो ये कितना होगा सर? It will be 50। समझ में आएगा सर? इस पॉइंट से it should move outward। समझ में आया सभी को? नहीं आया सर, नहीं आया सर? प्लीज बताइए आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? देखो देखो, प्लीज लुक एट माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लुक एट माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखना, देयर इज वन वेक्टर लाइक दिस एंड सुनो सर, सुनो, देयर इज वन वेक्टर लाइक दिस एंड देयर इज अनदर वेक्टर लाइक दिस। एंड प्लीज लुक एट, this is vector A and this is vector B. And this angle is given as 30 degree. What is the angle between vectors? What is the angle between vector? कुछ नहीं है सर, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से आउटवर्ड, इंटरसेक्शन पॉइंट से वेक्टर आउटवर्ड, इंटरसेक्शन पॉइंट से वेक्टर बाहर जा रहा है, इंटरसेक्शन से बाहर, इंटरसेक्शन से बाहर, इंटरसेक्शन से बाहर, एंड दैट एंगल, इंटरसेक्शन से आउटवर्ड, इंटरसेक्शन से आउटवर्ड, दैट एंगल, दिस इज माय एंगल बिटवीन वेक्टर्स। नहीं आया समझ में? नहीं आया सर समझ में? प्लीज बताइए, इज इट क्लियर? प्लीज बताएं, इज इट क्लियर? सो नाउ देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, बिकॉज आई एम टेकिंग केयर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बिकॉज मशीन डिजाइन, सॉन्ग सब ले लेंगे हम, इसलिए एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर। इज इट ओके? अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देयर इज वन वेक्टर, देखो रे, देयर इज वन वेक्टर, देयर इज अनदर वेक्टर। चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो। This angle is 30 degree. This is vector A and this is vector B. What is the angle between A and minus B? What is the angle? No, तनुज, वही तो है, वही तो है, वही तो है। इसीलिए जल्दबाजी is very dangerous. What is the angle between A and minus B? माइनस B चाहिए, तो इसी को
आप माइनस बी चाहिए, लिसन रे, माइनस बी चाहिए, तो माइनस बी क्या होगा, एग्जैक्टली इसका अपोजिट होगा। दिस इज आवर माइनस बी। आपको किन दोनों के बीच में चाहिए, ए एंड माइनस बी, ए एंड माइनस बी। आई डोंट वांट दिस, तो ये मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट ए एंड बी, आई वांट ए एंड माइनस बी, आई वांट ए एंड माइनस बी, आई वांट ए एंड माइनस बी। ए से आउटवर्ड, इंटरसेक्टिंग आउटवर्ड, दिस इज द एंगल। तो क्या होगा, ये तो 180 है, ये तो 180 है, 30 निकाल दो, सो इट इज 150। शायद आपको समझ में आया होगा। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है सर। Till now is there any problem? Till now is there any problem? No. अब कुछ आगे जाएंगे सर। Let's move. तो now you should not commit mistakes. You should not ask me question in machine design. Sir, what is the angle between these two? कुछ नहीं, intersecting point से vectors outward, intersecting point से vectors outward, खत्म। अब देखो, इधर देखो सर, इधर देखो, intersecting point से बाहर, बाहर, yes, this is the angle, correct? इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ये अंदर आ रहा है, नो नो, तो ये ऐसा होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ऐसा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऐसा, सो दिस इज द एंगल। होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। क्योंकि हम वहां पे पढ़ेंगे सर, विच बोल्ट इज क्रिटिकली लोडेड। तो when this force and this force, when this force and this force is same, then which one will decide the angle? Look at f1 square plus f2 square plus 2f1, ये सब डिराइव करूंगा सर, cos थीटा। तो जब f1 f2 सारे बोल्ट्स में सेम है, तो which one will decide? cos थीटा। तो angle will decide. If you do not know how to find the angle, then you'll be in trouble. See the application, simple application। कैसा आया सर? तो ये लोगों को मैं नहीं पढ़ाऊंगा सर, I'll not teach them because they are not understanding. I'll go sir। समझ में आया नहीं रे, वाह 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 वाह। 20 दिन से क्लास नहीं ले रहा हूं सर, मैं थोड़ा फॉर्म में आने के लिए टाइम लगता है मुझे। वंडरफुल सर, वंडरफुल। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ना ना, आज फील हुआ, फील अभी होगा, अभी होगा ना, अभी होगा रे। मैं कुछ और बताऊंगा आपको। This is x-axis. Wait. अच्छा करेंगे सर, सब्जेक्ट को बहुत ही धमाकेदार करेंगे सर। मजा आएगा रे। कुछ अलग पूछ रहा हूं सर। सर्वजीत भाई का डीपी देखिए। ओ रे, एक नमूने हो गए सर्वजीत। क्या रे, इतना प्यार मत करो। हाँ, नाउ द क्वेश्चन इज, चुपचाप बैठो सर, चुपचाप बैठो सर। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड, कुछ मत करना सर। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो रे, इधर देखो रे। देखो देखो, प्लीज सुनो सुनो, चुपचाप बैठो। देखो प्लीज, प्लीज सुनो। वेक्टर ए with respect to x-axis, vector b with respect to x-axis, vector c with respect to x-axis दिया। Listen sir, he is asking what is the angle between a b and, देखो a b के बीच में, सुनो सुनो सुनो, कुछ मत करना। a इधर देखो, ले आके x-axis पे रखना। देखो 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 देखो, x-axis पे रख दिए, x-axis पे रख दिए। भावना हैज फेल्ट। वो फीलिंग जरूरी है सर। अगर फील नहीं होंगे तो लाइफ भी ड्राई होगा सर। ड्राई मत कर लेना लाइफ को,
स्टाइल। देखो इधर देखना, ये होगा। अब ये बी, ए बी, देखो फ्रॉम द इंटरसेक्टिंग पॉइंट आउटवर्ड, फ्रॉम द इंटरसेक्टिंग पॉइंट आउटवर्ड, तो ए एंड बी के बीच में एंगल क्या है सर? एनीवन, इट इज 60 डिग्री। समझ गए? 60 डिग्री। कोई बात नहीं सर, अब इसको मैं कैसे डिलीट करूंगा सर? बी एंड सी, ओहो, बी एंड सी, इधर देखो, बी एंड सी, लाओ, देखो नहीं, लाओ, अरे तो कुछ करेंगे गड़बड़, कुछ करेंगे रे। कुछ आइडिया आ रहा है सर सभी को? देखो प्लीज, ये 30 है, दिस इज 30 एंड दिस 45। तो फ्रॉम द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दिस इज वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है, तो ये 30, ये 45 है, ये 30 है, तो व्हाट इज दिस एंगल? 15। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बाहर जा रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बाहर जा रहा है, सो देखो, सो देयरफॉर दिस इज हाउ मच? 45 माइनस, नहीं आ रहा सर समझ में, 45 माइनस 30, इट इज 15। बी एंड सी के बीच में कितना आ रहा है सर? 15। समझ गए? सिमिलरली ए एंड सी करेंगे, ए ऐसा है, सी ऐसा है, देखो सी, ये कितना है? 30 एंड सी इज 45। सो फ्रॉम द इंटरसेक्टिंग पॉइंट A is like this, C is like this, intersecting point से दूर जा रहा है, what is the angle? 75. So are we clear? Up now I feel that there is no problem with, there is no problem with, there is no problem with angles. Is it clear? Clear sir? अभी मैं आगे बढ़ सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं। So now there is no problem with angle between vectors, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now look at carefully sirs, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वेरी गुड स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, वेरी गुड स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। अब देखते हैं सर, आराम से सुनो, आराम से सुनो, केयरफुली सुनो। एज्यूम दैट, अब देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिल नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम, बेसिक से चल रहा है सर। हम लाइक वेक्टर्स का एंगल होगा, अब वेक्टर का एडिशन करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो आजाद भाई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहां पे कहां घुमा रहा हो सर? यहां पे वेक्टर में कहां, देखो यहां पे तो प्लेन आइदर इट इज गोइंग आउटवर्ड, यहां आउटवर्ड, बस आउटवर्ड का एंगल ले लो। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स बता रहा हूं मैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स बता रहा हूं, ठीक है? फिजिकल मीनिंग का मतलब टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल, मतलब इसका फिजिकल मीनिंग एक बात बताता हूं सर। समवन आस्क्ड मी, सर इसका फिजिकल मीनिंग कुछ बताइए। फॉर एग्जांपल देयर इज अ मेंबर, look at carefully, on this member, dear students, on this member I have applied a force like this, and I have applied another force like this. There is an object, on this object I have applied a force like this, I have applied a force like this. So these two forces are acting at an angle theta, that is the meaning, physical meaning। मतलब एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स ऐसा, एक फोर्स ऐसा है, तो दिस इज द एंगल बिटवीन देम। समझ में आ गया? That is the angle between two vectors. Is it okay? Yes. अब आगे बढ़ते हैं सर। Now we'll proceed. इसका पूरा प्रैक्टिकली दे देंगे हम। Why do you worry? Now have a look at this. Very simple sir. वेक्टर का एडिशन चाहिए। I want the addition of vectors. बहुत सिंपल। First we'll go to triangle law of ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो ध्यान से सुनो, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है,
इधर देखना सर, दिस इज वेक्टर बी सपोज एंड दिस इज वेक्टर ए। अब दोनों को ऐड करना है। इज इट ओके? इज इट ओके? इज इट ओके? अब देखते हैं सर, प्लीज शांति से बेटा, कुछ मत करना सर। वेक्टर ए वेक्टर बी को ऐड करना है। किसको ऐड करना है? प्लीज लुक एट ए प्लस बी। ए को क्या ऐड करना है? ए को क्या ऐड करना है? इट्स समथिंग लाइक 3 + 5। 3 को क्या ऐड करना है? 3 को क्या ऐड करना है? प्लीज, देयर इज अ मीनिंग सर। जब भी किसी का डायरेक्शन होता है तो कौन सा फर्स्ट ले रहे हैं, कौन सा सेकंड ले रहे हैं, ये मैटर करता है। समटाइम्स सेम आएगा तो तब ठीक है, लेकिन don't think that every time you are getting the same. So when something has a direction, उसी डायरेक्शन से चलना है आपको। What does 3 + 5 mean? हम 3 ऑलरेडी था, उसको क्या ऐड कर रहा है? उसको 5 ऐड कर रहा है। ये ऑलरेडी था, उसको क्या ऐड कर रहा है? b को ऐड कर रहा है। और what is b + a? इसका मतलब है ऑलरेडी 5 था, 5 को हम 3 ऐड कर रहे हैं। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सो फॉर्चुनेटली हमें सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन प्लीज ऑब्जर्व हियर दैट डायरेक्शन किसी का भी होता है ना, वो डायरेक्शन में जाना बहुत जरूरी है। इज इट ओके सर? अब देखो, मैं कुछ नहीं करूंगा, प्लीज लिसन केयरफुली, प्लीज लिसन केयरफुली, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली। अब देखो, इसके थोड़ा डुप्लीकेट करेंगे सर। ए को क्या ऐड कर रहे हैं सर आप? ए को क्या ऐड कर रहे हैं सर आप बताइए? ए को बी ऐड कर रहे हैं। इधर देखो, समझ गए ना? समझ गए? समझ गए ना? तो क्या कर रहा है सर? ए का जो एंड है उसको बी ऐड कर रहा है, मतलब हेड ऑफ दिस वेक्टर शुड बी जॉइन विथ टेल ऑफ द एडिंग वेक्टर। अब ये क्या देगा सर आपको? ये क्या देगा सर? a + b देगा। देगा या नहीं देगा? अब ये क्या देगा सर? इट विल गिव मी a + b। अब मुझे चाहिए b + a। अब देखो सर, नाउ आई वांट b + a। तो क्या करेंगे? b का जो एंड है, समझ गए? समझ गए रे? b a। इज इट ओके? अब देखो, ये समझ गए? नाउ अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, आराम से सर, कोई टेंशन मत लेना। माय ट्रायंगल लॉसेस, लुक एट केयरफुली, लुक एट केयरफुली, ये दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों का रिजल्टेंट, इट शुड बी द क्लोजिंग साइड। ये दोनों का रिजल्टेंट, इट शुड बी क्लोजिंग साइड, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सर ये थोड़ा एक्सप्लेन करो सर, समझ में नहीं आया। बहुत ही अच्छी बात है सर, बहुत ही अच्छी बात है, चुपचाप बैठो आप, चुपचाप बैठो सर, बहुत ही अच्छी बात है, चुपचाप बैठो। सर ये सब मैं क्यों कर रहा हूं सर? देयर इज अ रीजन, बिकॉज देयर आर, ये अगर ये समझ में नहीं आ रहा, आपको एग्जाम में डायरेक्टली वेक्टर में देता है तो यू विल बी इन ट्रबल। सिंपल हल्के से क्वेश्चंस वी कैन डू, बट थोड़ा डिटेल में करेंगे। ये मुझे बताओ, ये क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है? एनीवन इन द क्लास, व्हाट इज दिस गिविंग, व्हाट इज दिस गिविंग? दिस इज गिविंग मी टू ए वी हैव एडेड b, तो ये क्या देगा? a + b। अब ये क्या देगा सर? b को हम क्या ऐड किए? b + a। इज इट क्लियर? अब देखो, एक काम करो सर, टेंशन मत लेना आप, एक काम करो, let this angle be some theta. Can anyone tell what is the angle between A and B? Anyone in the class? What is the angle between A and B? इधर देखो, intersecting point से दूर
इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दूर, सो ये ही होगा थीटा। कैन आई से थीटा, समवन सेड 180 माइनस थीटा। क्या करो सर, इतना साफ पढ़ाने के बाद। इधर देखो, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ये पॉइंट के तरफ आ रहा है, पॉइंट से दूर जाना है, पॉइंट से दूर जाना है, और ये तो ऑलरेडी पॉइंट से दूर जा रहा है, तो ये एंगल क्या होगा सर? नहीं है सर। सर आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है सर, प्लीज बताइए। आर यू नॉट इन ए पोजिशन टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स? आ गया या नहीं है? अरे यार, ये कैन आई कॉल दिस एज इंटरसेक्टिंग पॉइंट? ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट के तरफ आ रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दूर जाना है। इधर देखो, इधर से दूर मतलब ऐसा जा रहा है, तो ये लाइन चाहिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो दूर जाने वाला लाइन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दूर जाने वाला लाइन, वो दोनों के बीच का एंगल थीटा। वेरी गुड। नाउ कैन आई से A is purely in the horizontal direction? Can I say A is purely in the horizontal direction? Can I say A is purely in the horizontal direction? Yes. अब आप ये बताइए, what is this? ये B का ऑपोजिट है, तो can I say this as B sin theta? Can I say this as B sin theta? Yes. और ये क्या है सर? Anyone? B का cos theta. At least ये तो पता है ना आपको, at least ये तो पता है ना। अब देखो, now you tell me what is the total horizontal component? Total horizontal, ये तो purely horizontal है और ये horizontal है। ध्यान से सुनो सर, what is the total horizontal? ये horizontal है, ये ऑलरेडी इसका horizontal है। सुनो रे, ये horizontal, so total horizontal क्या होगा सर बताइए? Anyone in the class? Total horizontal, ये और B दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हम ऐड कर सकते हैं? यस, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो आई कैन इजीली ऐड। सो प्लीज ऑब्जर्व क्लियरली, व्हेनेवर टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, algebraic addition or vector addition both are same. कुछ सेंस हुआ सर? Whenever both vectors are in the same direction, अगर दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो whether you add algebraically or vectorially, they are same. But if they are not at same angle, not in the same direction, now you have to take components of that. ये समझ में आया सर? ये वेक्टर रूल है, ये वेक्टर रूल है, शायद आपको समझ में आया होगा। Is it clear? Now look at my dear students. Now I will go for this total length. What is this total length? ये तो A है, ये तो B cos theta, और ये होगा। अब देखो, मुझे बताओ सर, when I resolve this, इसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा। 100 रुपीज का चेंज लिए सर, when you take 100 रुपीज change, you'll be having change only. For example, 60 रुपीज का नोट, 40 रुपीज का नोट, तो आप बोलेंगे 60-40 कहां है? हम लाते हैं सर, मेरी मर्जी। सो व्हेन यू टेक चेंज फॉर 100 रुपीज, आई हैव 60, आई हैव 40। आपके पास 100 भी होगा, 60-40 भी होगा क्या? नहीं ना। व्हेन यू हैव रिजॉल्व्ड इट, होगा। व्हेन यू टेक चेंज फॉर 100 रुपीज, 100 तो देना पड़ेगा, यू हैव टू गिव 100। सो देयरफॉर ये तो गया, इसका कंपोनेंट ये आ गया, और इसका कंपोनेंट ये आ गया। टोटल हॉरिजॉन्टल ये हुआ, टोटल वर्टिकल ये हुआ। अब आप बताइए सर, ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, अब ये बताओ ये क्या होगा? कैन आई से दैट दिस इज द रिजल्टेंट? बोलो रे, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं सर? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा सर? A प्लस B, इसका, और इसका वर्टिकल ये होगा। नहीं है ऐसा समझ में? नहीं है सर समझ में? एक्चुअली आया है, नहीं है सर? सो देखो, बट व्हाट इज दिस? आप बताइए व्हाट इज दिस? एक्चुअली मैं इसको ही रिजॉल्व किया था, करेक्ट, इसको ही रिजॉल्व किया था। किसको रिजॉल्व किए थे? आई हैव रिजॉल्व दिस इनटू हॉरिजॉन्टल, आई हैव रिजॉल्व दिस इनटू वर्टिकल। मतलब ध्यान से सुनो, लिसन सर्स, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, वंडरफुल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। ये किसका रिजल्टेंट है सर? दिस इज वेक्टर बी। ये क्या है सर? ये दोनों का रिजल्टेंट है, ये दोनों का रिजल्टेंट है, और ये A प्लस बी आया या नहीं है, और ये A प्लस बी आया नहीं है, तो क्या हुआ सर? हाँ, क्या हुआ सर? सर एरो का साइन एंड होगा। क्या एंड होगा सर? ये दोनों का रिजल्टेंट। इसका मतलब ट्रायंगल लॉ क्या बोल रहा है? देखो,
ट्रायंगल लॉ क्या बोल रहा है सर? इधर देखो, व्हाट इज ट्रायंगल लॉ सेइंग? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू sides of a triangle taken in order. What do you mean by taken in order? ये एक ट्रायंगल ऑर्डर में, ये एक ट्रायंगल और ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ये क्या हुआ रे? क्या हुआ? अच्छा, मैं अरे यार देखो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अच्छा ये बोल रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको शो कर। अच्छा ये बोल रहा है, चलो ठीक है। वो बोल रहा है सर एरो शुड बी ऑन इट। अरे ठीक है, आपको यहाँ पे ना व्हेन आई एम ड्राइंग लाइक दिस, एक वेरी गुड, जब मैं ये ड्रॉ कर रहा था ये एक्चुअली नहीं दिख रहा था क्योंकि इसको ज्वाइन करते समय देखो, अब इसको ज्वाइन करते समय देखो रे, अब ज्वाइन करते समय देखो अब ज्वाइन करते समय, अरे एक सेकंड इधर देखो, ज्वाइन करते समय ये सही नहीं दिख रहा था, समझ गए? इसीलिए मैं यहां पे शो किया। एरो तो यहीं पे है सर, एंड यहीं पे हो रहा है। प्लीज ये तो समझो सर, मेरे फीलिंग भावनाओं को समझो। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। होप यू अंडरस्टूड सर, समझ गए ना? मैं गलत नहीं किया सर। सो ये अब इसका डायरेक्शन क्या है सर? इसका तो दिख रहा ही नहीं, इसीलिए मैं शो किया। एक्चुअली यहीं पे है सर ये, प्लीज सर समझो, भावनाओं को समझो। भावना जी, भावनाओं को समझो। ओके, नहीं है सर समझ में? तो यहां से एक ब्यूटीफुल कंक्लूजन निकला सर। देखो अब इसको निकाल दिया तो दिख रहा, पहले नहीं दिख रहा था सर। तो क्या समझ में आया सर? व्हाट इज ट्रायंगल लॉ? इफ टू वेक्टर्स आर टेकन इन द ऑर्डर एंड द थर्ड वेक्टर द क्लोजिंग साइड, देखो एक बार देखो, ये ऐसा क्लोजिंग ऐसा, बट आपको कैसे आया सर? आपको कैसे आया सर? हाँ, थोड़ा दिखने जैसा करो नीतीश, दिखे जैसा। व्हाट डू आई मीन बाय दिखे जैसा? इधर देखो, ऐसा है, समझो। इट शुड बी विजिबल, समझ गए ना? इट शुड बी विजिबल। देखो सर, क्या समझ में आया सर आपको? व्हाट हैव यू अंडरस्टूड? व्हाट हैव यू अंडरस्टूड? हमने ये देखा सर, इधर देखो, हमने ये देखा सर, इधर देखो, इसका रिजल्टेंट क्या है सर? क्लोजिंग। ये सर अभी तो देखिए, जस्ट आई हैव प्रूव्ड। सो इसका इफ दीज टू आर द टू कंटिन्यूअस साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन इन दैट ऑर्डर, इस ऑर्डर, व्हाट डू मीन बाय इन दैट ऑर्डर? ऐसा है कि एक ऐसा एक उल्टा, नो, ऑर्डर का मतलब वही चलना है, जैसा ये चल रहा है ये ऐसे ही चलना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, नहीं है ऐसा समझ में? व्हाट डू मीन बाय टेकन इन ऑर्डर? ये ऐसा जा रहा तो ये ऐसे जाना है। सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट सर? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? एनीवन इन द क्लास, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? क्लोजिंग साइड। लाइक दिस। क्या ये सही है सर? मेरा रिजल्टेंट नहीं आया ऐसा नहीं आया। मेरा रिजल्टेंट मैं डिराइव किया, ऐसा नहीं आया। तो मेरा रिजल्टेंट आया है ऐसा। This is the resultant of A and B. So कुछ मत करना। If two vectors are represented by two sides of a triangle taken in order, then their resultant is the closing side in opposite direction. क्या आप इसका रिजल्टेंट दिखा सकते सर? इधर देखो, ऑर्डर देखो, ऑर्डर, ऐसा, but resultant should be the opposite direction. कलर चेंज करेंगे सर, आया नहीं है सर? Is it clear or not? Is it clear or not? So like this, closing should be in the opposite direction. तो यहां दिखा रहा हूं आपको मैं, प्लीज लिसन। एक्चुअली यहां पे नहीं है डायरेक्शन, तो मैं यहां पे दिखाऊंगा, शायद समझ में आएगा। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन सर? क्या ये दोनों सेम है? डेफिनेटली अगर हम प्रूव करेंगे तो सेम आएगा। इसीलिए a प्लस बी एंड b प्लस a इज सेम। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है, वेक्टर एडिशन इज फॉलोइंग कम्यूटेटिव लॉ। इज इट ओके? अरे देखो ये दोनों सेम है या नहीं है? यस, इट इज b प्लस a। अगर आपको चाहिए तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। कैसा प्रूव करके दिखाऊंगा सर? सेम ये वाला लाइन एंगल लेके मैं करूंगा।
Is it clear, sir? Is it clear, dear students? Is it clear? तो what is मतलब हमारा फोर्स, यस सेम होगा, हमारा फोर्स क्या फॉलो कर रहा है सर? वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है, अनलाइक योर करंट वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है, देयरफॉर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो व्हाट इज ट्रायंगल लॉ? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स इज यूज्ड टू फाइंड रिजल्टेंट. तो आप ध्यान से सुनो, एक ब्यूटी दिखाऊंगा सर, बहुत केयरफुली देखो, बहुत केयर सर. यहां तक सभी को समझ में आया सर? टिल नाउ हैव यू फॉलोड सर? माय डियर स्टूडेंट्स, टिल नाउ हैव यू फॉलोड सर? डियर स्टूडेंट्स, हैव यू फॉलोड सर? प्लीज बताइए. यस यस है तो मैं आगे बढ़ूंगा. तनुज भाग गया देखो, तनुज भाग गया देखो. अब देखना सर, प्लीज लिसन सर, प्लीज लिसन माय डियर स्टूडेंट्स. डियर स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आया सर? अब देखो, वेरी गुड, ब्यूटीफुल बोलो रे, ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल बोलो. तनुज भाग गया देखो. अब देखो देखो, अच्छा राइटिंग नोट्स, सुनो सुनो, कोई भी नोट्स अच्छा लिखेंगे ना, उनको मैं इनाम दूंगा, कसम से बहुत बड़ा इनाम दूंगा. अच्छे नोट्स बनाओ, रोज के रोज बनाओ, बना के भेजो मुझे. सुनो अब देखो सर, लुक एट केयरफुली, ध्यान से सुनो. देयर इज अ फोर्स लाइक दिस, देयर इज अ फोर्स लाइक दिस. ये दोनों का, सुनो केयरफुली, ये दोनों का रिजल्टेंट ये है, करेक्ट? ये दोनों का रिजल्टेंट ये है. मीन्स आई कैन से देयर इज अ नेट फोर्स. यस और नो? नेट फोर्स मतलब फॉर एग्जाम्पल ये कुछ है, ये F1 है, ये F2 है, ये दोनों का रिजल्टेंट कुछ बचा है सर, कुछ बचा है. अगर सुनो केयरफुली, दिस इज द रिजल्टेंट, प्लीज नोट ऑन दैट, एरो यहां पे ही लगाया, मैं मेरे फीलिंग को समझो. दिस इज द रिजल्टेंट. अगर तीनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो सर, इफ 3 फोर्सेस आर एक्टिंग, मान लो 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, अगर थर्ड फोर्स ऐसा आ गया तो क्या मतलब है सर? थर्ड फोर्स ऐसा आ गया, क्या मतलब है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? थर्ड फोर्स ऐसा आ गया, अरे यार ये दोनों का रिजल्टेंट इज एक्चुअली, ये दोनों का रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू इज लाइक दिस, द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू इज लाइक दिस, but there is a third force exactly same but in opposite direction. मतलब these two, ये दोनों का रिजल्टेंट, सुनो केयरफुली, ये दोनों का रिजल्टेंट ये है, समझ गए ना? ये दोनों का रिजल्टेंट ये येलो वाला है. अगर थर्ड फोर्स ऐसा एक्ट कर रहा है तो ये दोनों नलिफाई हो जाएंगे, रिजल्टेंट क्या हुआ? 0. इसका मतलब है ट्रायंगल ऑटोमेटिकली अगर ऐसा क्लोज हो रहा है, what is the net force? Triangle automatically close हो रहा है, what is the net force? 0. क्योंकि the resultant of these two will be, dear students, the resultant of these two will be like this, with arrow like this, but these two, resultant of these two is like, अब ये दो नहीं रहेंगे, ये दोनों का रिजल्टेंट डालेंगे तो ये दोनों नहीं रहेंगे. अरे ये दोनों का रिजल्टेंट ये व्हाइट वाला है, तो ये दोनों को निकाल दो. अब ये दोनों नलिफाई हो रहे हैं तो नेट क्या होगा? 0. इट मींस whenever the triangle is automatically closed, means my object is in equilibrium under the action of these 3 forces. अगर मेरा ट्रायंगल क्लोज नहीं हुआ तो ये दोनों का रिजल्टेंट, देखो केयरफुली, अगर ये क्लोज नहीं हुआ, सुनो केयरफुली, अगर ये क्लोज नहीं हुआ, ऐसा ही है, मतलब ये दोनों का कुछ रिजल्टेंट बचा है. ऑटोमेटिकली अगर ये क्लोज हो रहा है, ऑटोमेटिकली देखो एरो देखो प्लीज, ये और ये का रिजल्टेंट ये है, द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू इज दिस, बट इफ देयर इज अ थर्ड फोर्स एक्टिंग लाइक दिस, these two gets nullified. तो याद रख लेना सर, इन सीक्वेंस, वही सीक्वेंस में अगर ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहा है तो रिजल्टेंट इज 0. ये कब 0 होगा, क्या होगा, ये सब हम देखेंगे. सो कॉन्सेप्ट आया सर? डियर स्टूडेंट्स, इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ऑटोमेटिकली जब देखो 3 फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, प्लेनार, कोप्लेनार, ये सब देखेंगे. इज इट ओके सर? चलो लीजिए, यहां से कोई दिक्कत नहीं सभी को, मैं आगे बढ़ूंगा सर.
Let me proceed, sirs. Let me proceed. I'm happy with you people. Let me proceed. तो ट्रायंगल लॉ का कोई दिक्कत नहीं है. यस, ये बोल रहा है सर अगर सीक्वेंस, देखो देखो, वन स्टूडेंट सेड अगर सीक्वेंस में क्लोज नहीं हो रहा है, इतना ही बचा है, इसका मतलब है ये तीनों का कुछ रिजल्टेंट बचा है, मतलब देयर इज अ नेट फोर्स. देयर इज अ नेट फोर्स. यस, द रिजल्ट. यस, नीतीश हैज आस्क्ड वन क्वेश्चन, सर क्या रिजल्टेंट का मतलब है दोनों फोर्सेस का इफेक्ट? यस, व्हाट वी आर डूइंग इज the combined effect of two forces I am converting into a single force, that is known as equivalent. दोनों का equivalent, that is resultant. It is known as composition of forces. क्या बोलेंगे? शब्द देखो, composition of forces का मतलब बहुत सारे forces को एक resultant की तरह convert कर रहा है, that is known as composition of forces. Later on we go for resolution of forces, which is opposite. एक force रहेगा, उसको हम split करेंगे, उसको बोलेंगे resolution. तो आप बोलेंगे sir what is the reason for resolution? इधर देखना सर, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो रे. There is a difference between, सभी बताऊंगा शशि बाबू, सभी बताऊंगा सर, practical applications सभी बताऊंगा सर. Please, what do we mean by composition of forces? मतलब many forces are converted into a single force, which we call it as composition of forces. What do you mean by composition? That resultant force is composed of so many forces into a single force. So for example, there are so many forces acting here. ध्यान से सुनो, there is a bolt here. ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक बोल्ट है, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, प्लीज लिसन. यहाँ पे एक बोल्ट है, जो भी है, एक फोर्स ऐसा लगा है, एक फोर्स ऐसा लगा है, एक फोर्स ऐसे लगा है. आई एम कन्वर्टिंग ऑल दिस इनटू अ सिंगल रिजल्टेंट. लेट अस से एक सिंगल रिजल्टेंट ऐसा गया. ये इस सबका कंपोजिशन ये है, मतलब दिस इज कंपोज्ड ऑफ ऑल दिस थ्री. इट इज नोन एज कंबाइनिंग ऑल इनटू अ सिंगल रिजल्टेंट. लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन आई कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू सिंगल? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये हम कल देखेंगे हाउ वी आर डूइंग दैट. सो हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन? कंपोजिशन का मतलब सारे फोर्सेस को एक में कन्वर्ट कर रहे हैं. रेजोल्यूशन का मतलब एक फोर्स है, देयर इज वन फोर्स, इस फोर्स को नाउ आई एम स्प्लिटिंग लाइक दिस. इस फोर्स को ऐसा कर रहा है, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन इज ऑपोजिट ऑफ कंपोजिशन. कंपोजिशन इज कन्वर्टिंग ऑल फोर्सेस इनटू अ सिंगल फोर्स, व्हेयरएज रेजोल्यूशन इज सिंगल फोर्स इज स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट्स. कैसे करेंगे हम बताएंगे. तो वन स्टूडेंट आस्क्ड मी क्वेश्चन, सर व्हाई वी आर डूइंग दिस? फॉर एग्जांपल सर, क्रिकेट मैच चल रहा है, कितने टीम मेंबर्स है सर? क्रिकेट मैच चल रहा है, कितने टीम मेंबर्स है सर? यस एग्जैक्टली ललित, 11 मेंबर्स. क्या टॉस डालने के लिए 11 लोग जा रहे हैं? क्या टॉस डालने के लिए 11 लोग जा रहे हैं? नो, सम रिप्रेजेंटेटिव, एक ही. तो ये सबका एक रिप्रेजेंटेटिव, तो मेरे लिए इजी होगा सर. तो प्लीज नोट डाउन दैट द रिजल्टेंट इज गिविंग द सेम इफेक्ट as that of resultant is giving the same effect as that of various forces. कैसा वो इफेक्ट देगा हम बताएंगे आपको. hope you have understood. So life becomes very easy. Life becomes very easy if I convert everything into single. अब ये 2RA force, F3U come, F4U come, F5U come, हर मर्तबा आई कैनॉट टेल ना, सबको एक में डाल दिया और एक कैप्टन बोल दिया, रिजल्टेंट बोल दिया, चलो. हमारे कैप्टन कौन है? हम तो फकीर है, झोला लेके चल पड़ेंगे. वैसा हम कोई नहीं, हमारे कैप्टन, something like that. So therefore, have you understood, sirs? Have you understood composition and resolution? One student said, sir, composition तो समझ में है, because you are converting everything into single. So when I convert into a single force, life becomes easy. Yes or no, sir? So when you are converting everything into single force, life becomes easy. So we have understood the composition. Sir, we have not understood the resolution. Good. Composition क्यों कर रहे हैं sir?
to make our life simpler. कैसे? When we have so many forces, when I convert all these forces into a single force, and I'll see that the effect of that single force is same as the effect of single force is same as all. अरे यार, कभी नहीं पढ़े रहे आप? Pipes in series, pipes in parallel, or resistances in series, resistances in parallel, same effect, equivalent resistance लेके problem solve नहीं किए sir. Will the life become easy? Yes, it will become easy. When I convert everything into a single one, will the life become easy? It will become easy. तो वही तो कर रहे आप, पागल की तरह पूछ रहे सर. ये तो समझ में आया सर, all into single, लेकिन single को break क्यों कर रहे हैं आप? So we have understood what exactly is composition and why this is done. We have understood, but why we are going for resolution? Good. इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो सर, इधर देखो. एक फोर्स ऐसा लगाया, ऐसा लगाया. मान लो एक फोर्स ऐसा लगाया. अब सुनो केयरफुली, सुनो सर, डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली. एक फोर्स ऐसा लगाया, सेइंग दिस एंगल इज सम थीटा. नाउ आई विल रिजॉल्व दिस इनटू टू. Why are we resolving? इंटरव्यूज में पूछेंगे, इंटरव्यूज में पूछेंगे. सर रेजोल्यूशन इज नॉट डन. वो हाँ, वो कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस में जारे करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे? अगर एक ही फोर्स है उसको भी रिजोल्व कर रहे, क्यों? अरे यार, एक ही फोर्स है उसको भी रिजोल्व क्यों कर रहा है? मैं बताता हूं, सुनो. इंटरव्यूज में पूछेंगे, इंटरव्यूज में पूछेंगे. इट्स नॉट फॉर फन वी आर डूइंग डियर. सो देखो, इट्स नॉट फॉर सिंप्लीफिकेशन. इधर देखो. नाउ ऑब्जर्व हियर, आई हैव रिजॉल्व. इसका एक मान लो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका एक मान लो वर्टिकल कंपोनेंट. अब देखो इसका इफेक्ट क्या है, एक्चुअल में क्या इफेक्ट है, और इसका क्या है, कितना बेंड कर रहा है, टर्न करवा रहा है. सेम फोर्स को हम दो कंपोनेंट्स में रिजल्ट किए, तो ये कितने फोर्स से पुल करने का क्षमता है, इंडिविजुअली कितना पुल कर सकता है. ये टोटल फोर्स इज नॉट इन पुलिंग, only the component of this is resulted in pulling, and this is resulting in movement. तो थोड़े मूवमेंट में, थोड़े एक्चुअल फोर्स में. तो आउट ऑफ द टोटल फोर्स, फॉर एग्जांपल, लेट द टोटल फोर्स बी 50. आउट ऑफ 50 ये 30 मान लो, ये 20, जो भी है, व्हाटएवर इट मे बी. तो ऐसा नहीं होता है, वेक्टर्स में सेम नहीं होता है. सो समझ गए? अगर ये 30 है, मान लो ये 60 है, जो भी है, तो मींस आउट ऑफ दिस पोर्शन इज resulting in pulling, and this is resulting in causing bending. तो इंडिविजुअल इफेक्ट जरूरी है. आउट ऑफ दिस 50, टोटल इज नॉट यूज फॉर बेंडिंग. नहीं है सर समझ में? टोटल इज नॉट यूज फॉर बेंडिंग. यहां पे मूवमेंट ये टोटल 50 के कारण नहीं हो रहा है सर, मूवमेंट आ रहा है, ये कंपोनेंट है इसका. सो इंडिविजुअली देखना जरूरी है सर. दैट्स व्हाई वी रिजॉल्व. व्हाई वी रिजॉल्व? फॉर एग्जांपल, और एक बात बताता हूं सर, सुनो केयरफुली. समझ में आया सर? प्लीज बताइए, समझ में आ रहा है सर सब्जेक्ट? अब देखो, फॉर एग्जांपल, आई हैव केप्ट इट ऑन द ग्राउंड. अब देखो, सुनो केयरफुली. तो अब ये बोलेगा ए फोर्स इज अप्लाइड, ए फोर्स इज अप्लाइड लाइक दिस. इसको क्यों रिजॉल्व कर रहे हैं सर? आउट ऑफ दिस हाउ मच इज गोइंग फॉर दिस, how much is going for this. So ये डायरेक्शन में कितना फोर्स आ रहा है, ये डायरेक्शन में कितना हो रहा है, फोर्स आ रहा है, तभी तो आइडिया आएगा ना. when you resolve, then only you'll get the idea ना. that's why we resolve, that's why we resolve. प्लीज बताइए आप लोगों को समझ में आया? यस, पुश पुल कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने के लिए we do this. इंटरव्यूज में अगर पूछेंगे तो ये आंसर दे देना. is it clear? क्लियर है या नहीं रे? कैन बी से? हाँ, देखो देखो, मयंक ने पूछा सर इज द रेजोल्यूशन डन ओनली व्हेन द वेक्टर इज इंक्लाइंड. ऐसा नहीं है सर. देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे. मैं मयंक जी का आंसर दूंगा. इधर देखो सर, इधर देखो प्लीज
सर हर एक के लिए रीजन है सर, एक फोर्स है, एक फोर्स है। ये मत सोचना कि हमेशा वी आर रिजॉल्विंग इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, गलत। डोंट थिंक दैट वी आर रिजॉल्विंग ओनली इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? देखो, नाउ आई मे बी रिजॉल्विंग लाइक दिस, yes, yes, or I may be resolving in my own direction। ये मत इधर देखो, अरे रे, ये मत सोचना कि हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, गलत गलत गलत। इट मे बी रिजॉल्व इन एनी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। कैसे? फॉर एग्जांपल, इसका कंपोनेंट, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस इन दिस डायरेक्शन एंड व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस इन दिस डायरेक्शन एंड व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ, फॉर एग्जांपल इधर देखना। सो क्यों ऐसा करते हैं सर? बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो सुनो सुनो। देयर इज अ ब्लॉक, there is a block and I have applied a force something like this. Look at carefully. Now I want to see the effect of this force along the plane and perpendicular to the plane. तो क्या हम इस फोर्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में किए? नहीं किए सर। I have resolved this along and perpendicular to the plane, but this is my horizontal sir, so I have not resolved. So I can also resolve this force, देखो, I can also resolve this force in this direction, in this direction। मतलब resolution can be आपके खुद के डायरेक्शन में होंगे, आपको जो चाहिए, whatever you want in that direction, उसका इफेक्ट उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसलिए I'll be taking in that direction। Don't think that resolution means only horizontal vertical. Please remove from your mind that bad concept. Resolution means x-axis, y-axis. This is my x-axis. This is my y-axis. अब बोलो, क्या ये horizontal vertical है? हम जिस डायरेक्शन में चाहिए उसमें, for example, dear students, for example, I want the effect of this force in this direction. I want the effect of this force in this direction. So I will be resolving in these directions. So resolution can be any two mutually perpendicular। समझ में आया नहीं? अब देखो, मैं पूरा समझ में आ गया ना? पक्का पक्का आगे बढ़ सकता हूं। वेरी गुड स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, वेरी गुड स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, व्हाट अ ग्रेट स्टूडेंट्स आई हैव विटनेसिंग। सो शुरुआत अच्छा हुआ सर, अच्छा हो रहा है सर सब्जेक्ट, खुश हो कि नहीं सर? कॉन्सेप्चुअली जाएंगे सर, कॉन्सेप्चुअली जाएंगे सर, कॉन्सेप्चुअली जाएंगे सर, कसम से बोल रहा हूं ना, कॉन्सेप्चुअली जाएंगे। सेंटर ऑफ मास, फ्रिक्शन, वर्चुअल वर्क, मेरे अंदर का जो फीलिंग है, एक बार गिफ्ट देके छोड़ूंगा सर। सुनो सर केयरफुली, बहुत केयरफुली देखो। no. अभी पैरेललोग्राम नहीं पढ़े सर। Principle of okay, मैक ने अगेन बहुत अच्छा सवाल पूछा सर, क्यों परपेंडिकुलर है? क्यों परपेंडिकुलर होने से क्या होता है ना, cos थीटा sin थीटा मुझे कैलकुलेट करना इजी होता है, तो देयर बाय उसका इफेक्ट उस डायरेक्शन में सेम होता है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो मुश्किल होगा कैलकुलेशन के लिए, वही एक चीज है। Is it okay? Principle of transmission of force. Which bodies are you studying, sirs? Which bodies are you studying, sirs? Rigid body. Rigid body बहुत ही अच्छा है। सुनो 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 सुनो, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है सर, सुनते जाना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर। certain concepts are very very important. I have an object.
अब देखो हर रोज तो 11:30 तक होगा, आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा, ठीक है? कोई नहीं। ध्यान से सुनो सर, प्लीज लिसन, प्लीज लिसन, प्लीज लिसन, प्लीज लिसन। You are interested in external forces or internal forces? I'm talking about engineering mechanics, external forces. अब देखो, look at carefully. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा डेप्थ जरूरी है सर। 6 to 9 थोड़ा सुनो रे, सब आपके कन्वीनियंस से नहीं होगा सर, मेरे भी कुछ कंस्ट्रेंट्स है, मेरा भी फैमिली है। सर आप ना, आपको बहुत वेराइटी स्टूडेंट्स है आप। मैं जा रहा हूं सर, अब आपको नहीं पढ़ाऊंगा सर, आई विल नॉट टीच यू पीपल। लिसन लिसन, रिकॉर्डेड मिलेगा ना रे, कैन आई गेट रिकॉर्डेड सेशन? ये सवाल नमूना ही पूछ रहा है, ये तो नमूना ही आते हैं इस क्लास में। सुनो सुनो, look at carefully, please my dear students, look at, you are seeing the effect of external forces, you are seeing the effect of external forces on rigid bodies. अगर 2 words if you are not taking care of, you are gone my dear friends। क्या 2 words? rigid, principle of transmission of forces। सुनो सुनो केयरफुली, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फोर्सेस, तो क्या पढ़े हम? रिजिड बॉडीज और एक्सटर्नल फोर्सेस। ये कौन सा फोर्स है सर? एक्सटर्नल फोर्स। लेट अस से आई हैव अप्लाइड 50 न्यूटन का फोर्स, और यहां पे भी 50 न्यूटन ऑफ फोर्स। अब बताइए सर, व्हाट इज द एक्सटर्नल इफेक्ट? एक्सटर्नल इफेक्ट मतलब एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट इसमें क्या है? ओनली तनुज हैज गिवन द आंसर, सेम है, सेम है। क्या होगा? मैं ऐसा खींच रहा हूं तो आगे जाएगा, और ऐसा पुश कर रहा हूं तो वो आगे जाएगा। क्या मतलब हुआ सर? क्या मतलब हुआ सर? सुनो केयरफुली, अगर मैं क्या करूंगा, सुनो केयरफुली, सुनो केयरफुली, अगर यहां अप्लाई करूंगा और बीच में और एक ले लेंगे सर, सुनो रे, सुनो सुनो, ये पूरा आ रहा है, चलो इतना ही ले लेंगे। सेम 50 न्यूटन। क्या हो रहा है सर बोलो? क्या हो रहा है सर बोलो? वेदर यू आर अप्लाइंग एट दिस पॉइंट, whether you are applying at this point, whether you are applying at this point, the effect is same। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है आपके साथ। I am moving the force along the line of action of force। ध्यान से सुनो सर, I am not moving the force in some other direction। मैं इस फोर्स को, देखो ये फोर्स को मैं ऐसा इंक्लाइन करके नहीं जा, along the same line of action, तो इफेक्ट क्या मिल रहा है सर? Please note down that it is based on observations, there is no proof for this, it is based on observations। certain things are based on observations and certain things can be derived। great, इसका मतलब है my dear students,
इसका मतलब ये होगा सो ये फोर्स को इस लाइन पे कहीं पे भी मूव करना तो इफेक्ट क्या होगा सर? वेरेवर आई मूव दिस फोर्स अलोंग द लाइन द इफेक्ट इज व्हाट? सेम सेम सेम। अंश ने पूछा इंटरनल, इट्स समथिंग लाइक दिस। मैं छोटा होल मार के उस पॉइंट से छोटा होल मार के वहां पे कुछ धागे से खींच रहा हूं मैं, ये भी एक्सटर्नली है सर। इसका मतलब है सर ऑन अ रिजिड बॉडी, इस पॉइंट को कैच करना, ऑन अ रिजिड बॉडी when you move the force along the same line of action the effect is same। इसका मतलब है सेम फोर्स ये लाइन पे ट्रांसमिट हो रहा है, सेम फोर्स इसी लाइन पे ट्रांसमिट हो रहा है। अगर यहां पे अप्लाई करूं, यहां पे अप्लाई करूं, यहां पे अप्लाई करूं, यहां पे अप्लाई करूं, बट प्लीज नोट ऑन दैट द डायरेक्शन शुड बी अलोंग द लाइन, मतलब इसी लाइन पे मूव करना है, इसी लाइन पे मूव करना है। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स। बट ध्यान से सुनो, we are interested only in the external behavior, not internal behavior. We are interested only in external behavior, not internal behavior. So under the action of, it's something like this. Under the action of 50 Newton, under the action of 50 Newton, what is the external behavior? बोले रे, under the action of 50 Newton, under the action of 50, मतलब along this line, if I move the force, the effect is same. एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, ये कहां से ऑब्जर्व किया सर? और मिस्टेक कर रहे सर आप। We are interested only in the external effect of this external force, and my body is a rigid body. एक स्टूडेंट ने मेरे से सवाल किया, सर आई हैव अ डाउट। सर ये समझ में आया सर? तो मतलब क्या है, सेम फोर्स को अगर इसी लाइन पे मूव कर रहे हैं, सेम फोर्स को अगर इसी फॉर द सेम फोर्स व्हेन यू आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन द इफेक्ट विल बी सेम। So I'm not changing the magnitude, I'm not changing the direction, means the same force is transmitted, the effect will be same, effect will be same। ये कहां से आया सर? ऑब्जर्वेशन से। इसका मतलब है वेदर यू पुल लाइक दिस, वेदर सम स्टूडेंट्स है सर हमने बचपन में पढ़ा सर पुलिंग इज इजी, पुशिंग इज टफ। अरे यार वो कॉन्सेप्ट ये नहीं है सर, वो कॉन्सेप्ट ये नहीं है। जब आप पुल कर रहे हैं तो ये और ये क्या ये सेम है सर? ये और ये क्या सेम है सर? क्या ये दोनों सेम है सर? प्लीज नोट ऑन दैट, डोंट ब्रिंग दोस टू इनटू अकाउंट। सो आई सेड अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, ये दोनों अलग है, ये हम बाद में पढ़ेंगे सर, ये हम बाद में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? शायद आपको समझ में आया होगा व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल। एक सूटकेस को आप ऐसा ले जा रहा है, एक सूटकेस को आप ऐसा ले जा रहा है, और एक सूटकेस को पुश कर रहा है, ये दोनों अलग चीजें हैं सर, ये दोनों अलग चीजें हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अलोंग द सेम लाइन। इज इट क्लियर? स्टॉप। अब देखो सर, ध्यान से सुनो, अब देखो प्लीज, क्लियर 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 डियर। हैव अ लुक एट दिस। वन स्टूडेंट हैज आस्क्ड मी अ ब्यूटीफुल, यस यस एग्जैक्टली दिस, वन स्टूडेंट हैज आस्क्ड मी अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैं वो बोला, क्या बोला पता है सर I have a doubt. Then I said, what is your doubt? He said, sir, देखो मैम ने बोला सुनो carefully, let this force be 50, let this force be 50, let this force be 50, let this force be 50. You are seeing what, sirs? You are seeing what, sirs? You are seeing what? External. Suno carefully. What is the net external force here? Suno, let me divide this into two.
What is the net external force here? What is the net external force here? सर कुछ नहीं बोल रहे सर. ये फर्स्ट केस में what is the net external force? अरे 50 right side 50 left side, तो net force is 0. What is the net external force? Anyone here? What is the net external force? What is the net external force? ये right side है, ये left side है, तो ये 0 होगा. External के अनुसार दोनों सेम है ना? Yes or no, sir? Yes or no? Yes or no? Yes or no? External, are they same or not? External, are they same or not? Yes, they are same. Are the internal effects same? Are the external force is 0, external force is 0? Are the internal effects same? अगर deformable body होता है, अगर deformable body होता है, if it is a deformable body, my dear students, what will happen to its length? It will increase. After some time, you will see this body something like this. After some time, you will see something like this. And after some time, you will see something like this. Is the internal behavior same? Is the internal even though the external effect is same, the internal is not same. That's why, please, my dear students, whenever you are seeing the principle of transmission of force, don't go for internal effects. It's only external, external, external. And it is a deformable body. It is a deformable body. That's why principle of transmission के लिए rigid body जरूरी है. Deformable में effect अलग-अलग है. तो इसीलिए कभी भी याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स पढ़ेंगे जब, एक्सटर्नल इफेक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी, इंटरनल हम इंटर ही नहीं होंगे. सो डेफिनेटली इट्स इंटरनल बिहेवियर इज डिफरेंट. इट्स इंटरनल बिहेवियर इज डिफरेंट. इवन दो द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, एक्सटर्नल फोर्स इज 0, नेट फोर्स इज 0, बट द बिहेवियर इज नॉट सेम. ऐसे कंफ्यूज मत होना सर. सो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स वो पूछेंगे, कैन आई अप्लाई टू डिफॉर्मेबल बॉडीज? नो सर, बी केयरफुल. Before ये only external effect देखना है तो ठीक है सर. Clear sir? Only external effect and on a rigid body. नहीं आया सर? समझ में आया सर सभी को? Please बताइए समझ में आया सर आपको? तो whenever I say principle of transmission of force, मतलब along the line of action, अगर same line पे force को transmit कर रहा है, effect will be same on a rigid body and only external effect. External behavior same, internal अलग-अलग होगा सर. Even though the external forces are same, but the behavior is different. Even though the external effect is same, but the internal behavior is different. So be careful, my dear students. तो principle of transmission किसको apply करेंगे? Rigid bodies को and external forces ही discuss करेंगे. मतलब engineering mechanics में तो already have assumed rigid body and already we are dealing with external forces. Internal तो पढ़ेंगे नहीं, तो हम principle of transmission of forces यहाँ पे mechanics में कर लेंगे. Clear? समझ में आ गया? समझ में आ गया? स्टॉप. यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अकॉर्डिंग टू मी बेसिक्स अगर किसी के स्ट्रांग है तो आप उठेंगे सर. मैं ये चैलेंज कर रहा हूं आपको, अगर ये मैकेनिक्स मेरा कर लिए ना, कल ये बेसिक से आप और इसको ऐड करेंगे और ऐड करके आप महान टीचर बनेंगे. मुझे पता है सर, मुझे पता है सर. आप प्लीज इस बैच से मुझे एक ना एक, I want multiple students. कल इंडिया के टॉप मैकेनिक्स टीचर्स आपको बनना है सर, कसम से. वो मेरे लिए गिफ्ट होगा. इस बैच से एक टॉप मैकेनिक्स के टीचर्स बनना है. लेकिन वॉट एवर कॉन्सेप्ट आई एम गिविंग उसी से संतुष्ट मत होना, उससे और ऐड कर लेना और टॉप टीचर्स बनना और मेरे से मिलने एक बार आ जाना. या फिर मैं ही, आप टॉप बनने के बाद आपका नाम सुन के मैं ही खुद आपके पास आ जाऊंगा. यस मिस्टर ऋतिक. ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं सर. अब और एक बात है सर, अब यहाँ पे क्या है ना, इज इट ओके? इज इट ओके? मैं आगे बढ़ सकता हूँ सर? शैल आई प्रोसीड?
तो यहां तक हो गया। तो वी हैव सीन, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, एक सेकंड सर, यहां से कहां जाएंगे रे, यहां से कहां जाएंगे रे। अब देखो, यस यस मिस्टर नीतीश, ओके चल। सर ये मत सोचना कि मैकेनिक्स का मतलब ओनली स्टैटिक्स, नो, डायनेमिक्स भी पढ़ेंगे हम, एनएलएम तो पढ़ना ही है। ओके, वेरी गुड सर। ये शुरुआत हो गया सर, दिस इज आवर बिगिनिंग। बट बिफोर आई क्लोज, मैं एक छोटा सा क्या बोलते आइडिया दूंगा। सुनो केयरफुली, सुनो सर, अब जब फ्री बॉडी डायग्राम्स पढ़ाऊंगा ना, you start falling in love. There is a फोर व्हील, मतलब फोर व्हील्स है, रेयर व्हील ड्राइव है। अगर रेयर व्हील ड्राइव है तो हम रेयर व्हील का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फ्रंट व्हील का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सर फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ऐसा जो बुक्स में है ये डाल के, ये सिर्फ ये नहीं छोड़ेंगे सर, सीरियसली ऐसा नहीं छोड़ेंगे सर। देयर इज अ कार, तो द इनपुट इज गिवन टू द रेयर व्हील। सो द रेयर व्हील को इनपुट दिया है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सो रेयर व्हील ड्राइव में फ्रंट व्हील का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मजा आएगा सर। ठीक है, तो आज बस इतना ही आज के लिए। तो क्योंकि ना बहुत दिन हुआ मैं क्लास नहीं लिया था सर, तो 3 घंटे का भी आदत नहीं हुआ, अब करेंगे, ठीक है ना? खुश हो कि नहीं? अच्छा, सॉन्ग चाहिए? चलो एक सेकंड, आपके लिए सॉन्ग भी दूंगा, आपके लिए सॉन्ग भी दूंगा रे। एक सेकंड, देखो ये आ गया। प्रणाम गुरुदेव। हेलो हेलो। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव को प्रणाम। हाँ बोलो। सर बहुत ही अच्छा हुआ सर, आज की क्लास में ही मतलब सर आपने मतलब सिक्सर से शुरुआत कर दी सर, ओपनिंग। अच्छा, थैंक यू। सर एक सर वो पूछना था सर, जो सिलेबस में जो एप्लीकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, जो अभी रिसेंटली न्यू एडेड टॉपिक्स हैं, स्क्रू जैक, बेल्ट एंड ड्राइव, तो वो मशीन डिजाइन में होगा कि यहाँ पर कवर होगा वो? देखो ऑलरेडी मशीन डिजाइन में मैं करवाया, लेकिन यहाँ पे करवाऊंगा, स्क्रू जैक तो करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना? लिफ्टिंग, क्योंकि सर अपना ब्रेक्स क्लचेस तो एमडी में हो चुका है, लेकिन लिफ्टिंग मशीन्स एंड बेल्ट ड्राइव्स नहीं हुआ है। यहाँ पे होगा। ओके ओके सर, यहाँ पे करूंगा। हैप्पी, खुश हो? ओके सर, बहुत खुश हैं सर। चलो फिर कल मिलते हैं। ओके, बाय 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 बाय। और कौन है? और तिरुपति राव, तिरुपति राव, राव तिरुपति। సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్, చెప్పు నాయనా. సార్ నేను యూపీఎస్సీ ఆప్షన్ లో మెకానికల్ ఇంజనీర్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా సార్. నో ప్రాబ్లం. అంటే సిలబస్ సేమ్ ఉంటదా, అంటే యూపీఎస్సీకి ఇంకా తక్కువ ఉంటదా అని? ఇవన్నీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ నుండి వచ్చేస్తాయండి. ఓకే, సో అంటే ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఓకే ఓకే సార్, అంటే సెగ్రిగేట్ ఎలా సార్ చేసేది? ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ కొన్ని టాపిక్స్ ఏ ఉన్నాయి దాంట్లో. లేదు మీరు ఇవన్నీ చదవాల్సిందే. యు హావ్ టు స్టడీ ఆల్ దిస్, యు హావ్ టు స్టడీ ఆల్ సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్, దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్. ఎనఫ్. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ओके, वो करें गाने के लिए बोले ना, और कोई है? और कोई है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बोल रहे हैं प्रिंसिपल ट्रांसमिशन जो है या मोशन में अप्लाई करेंगे, किस में अप्लाई करेंगे? स्टैटिक कंडीशंस में। देखो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन का जो है ना, सो आप देखो। हेलो, क्या है? जी जी जी।
लुक एट केयरफुली, उसका इफेक्ट एग्जैक्टली मोशन में भी सेम होगा, रेस्ट में भी सेम होगा, लेकिन पहले हम स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। ओके सर वही तो सोचा। हेलो, हाँ सर। चलो कोई नहीं, गाना सुनना है। चलो आज के लिए बस इतना, कल मिलेंगे। ओके ना, चलो बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी मैं शेयर किया था, कल शेयर करूंगा, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना, थैंक यू, बाय बाय। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, विल स्टार्ट, मतलब कॉन्सेप्ट्स देने के बाद क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके चलो बाय।